So welcome to Kathan, Ali bhai. थैंक यू सो मच Ali bhai, सबसे पहले congratulations on Border 2. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज मुझे समझ नहीं है, वो प्रेशर हाँ इन फ्रंट ऑफ सनी देओल, जिनके सामने अमरीश पुरी साहब, डैनी साहब ऐसे विलन्स हैं, उन पर भी सनी देओल भारी पड़ते हैं मोस्टली. What you felt like when you got the role? I'll tell you, पहले बात तो तुमने मुझे मतलब अमरीश पुरी, डैनी डंजावन, जिनको who I look up to as the main antagonists. I wouldn't call them villains, but main antagonists, because वो they held their own. कोई भी आ जाए उनके सामने. And of course, opposite Sunny Deol, तो like you would need एक ऐसा बंदा जो स्क्रीन में थोड़ा इक्वल लगे. तो I'm honored that तुमने मुझे at least same breath में बोला है. I don't know if I've been able to do justice to that particular character. You loved it. Thank you so much. And बहुत सारे मेरे चाहने वालों ने भी मुझे काफ़ी लिख के भेजा है कि उन्हें पसंद आया मेरा काम Border 2 में. तो जितनी भी हो सके कोशिश की मैंने to live up to the expectations. But what was the pressure like? You felt the pressure? Yeah, You visited Sunny Deol की films घायल, घातक and all. You've been यार I've been brought up on Sunny Deol films, यार. You know, यार क्या बोलते हैं, so many movies, यार. तो of course the pressure of living up to matching his energy on screen, because he was fabulous. Like मेरा उनके साथ मतलब in the same frame बहुत कम काम था, except for the I think fight sequence, climax fight sequence. बाकी it was just pure thing. तो luckily I didn't have to face him that way much. तो हाँ मैंने परफॉर्म किया. I was just imagining that he's in front of me, और अगर वो मेरे सामने है तो मैं किस तरह से मेरा कैरेक्टर किस तरह से उसके कैरेक्टर को देखेगा. Because if I would have looked at him as Sunny Deol, I wouldn't have been able to do it. As simple as that. Yeah. I looked at him as a character कि ये है हिंदुस्तानी जनरल या कर्नल जो भी है, और मैं हूँ पाकिस्तानी जो भी कर्नल. तो how will that equation set out? तो उस हिसाब से मैंने कर पाया. नहीं तो if I would thought of him as Sunny Deol सामने खड़े हैं, तो मैं तो शायद ही नहीं कर पाता. And any conversation you remember with him during the preparation या during the sequence when you both were together? नहीं तो हमारे से फाइट सीक्वेंसेस आते हुआ है बेसिकली, एंड ही वाज वेरी लाइक एक चीज मैं याद रखूंगा, उनसे सीखी है मैंने कि ही इज बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर सो मेनी इयर्स नाउ, एंड येट वो जब सेट पे आते हैं एक अलग एनर्जी आ जाती है. यू नो there's a palpable energy on the sets. तो आते थे सब लोग, यू नो, रिस्पेक्ट के बात है, ओके सर ये है, वो बताते थे क्या क्या है. ठीक है, मैंने अपना रिहर्सल कर चुका हूँ, बिकॉज दे डोंट वांट कि भैया किसी और की वजह से उनको 2-3-4 टेक और देने पड़े. तो ऐसा तो मैंने अपना रिहर्सल कर लिया था, एंड देन एक्शन, एंड ही वुड कम लाइक हाँ ठीक है, एंड जैसा एक्शन होता था ही वुड टर्न इनटू the Sunny Deol, the lion that we all know, right? From yesteryears. And मैं बोला था ये तो अभी ऐसे थे, और सडनली एक्शन में ऐसा, और मतलब जब वो पंचिंग होता था, I was just amazed at the fact that इतनी फुर्ती कैसे आ जाती है. मैं भी it took me time to get it, because see I'm not used to that kind of you know, fight sequences and everything. एक बार once I got used to it, then it became easy for me, but till that time it was not. I was difficult. I was not understanding कि वो जो होता है जो flow क्या है, वो time क्या लेने. So, but once I understood, I think it was easier. Because I met him during Dharamji's prayer meet. My heart went out. I'm a big fan of Dharamji, and I have seen a small child and him crying and standing there helplessly. And I was God just bless Dharamji so much. He's the man who did Border, Ghayal, Ghatak, वो Lion, and now how he is. I think somewhere down the line, Dharamji's blessings on this film. Absolutely, I personally believe it's Dharamji's blessing on this film and on Sunny Ji and Bobby and everyone. Now they're all thriving, all thriving, and they deserve it. Yeah, they are like one of the premier families of Indian cinema. So. The legacy needs to move on. जो सारे characters थे, even Varun Dhawan तो एकदम surprisingly. I think I was very
pleasantly surprised to see him, and he's outshone himself. I think it's one of his best works because एक हरियाणवी का character play किया है, and he's lived that हरियाणवी through the, ऐसा नहीं कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि छोड़ दिया है, you know, it's like he's constantly being a part of the thing. Very nice, very Life before border to life after border to. यार I'm talking about the personal feeling. Personal, it's an accomplishment. बहुत I think, and वो एक अच्छा word है ना, उसको क्या बोलते हैं? Content, you feel content now? वो ऐसा वो एक अच्छा वर्ड आ रहा है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यस, आगे चलो अभी फिलहाल के लिए वो आई फील वैलिडेटेड नाउ. आई फील वैलिडेटेड इन सेंस कि यार मैं, आपको मालूम है, मैं आई थिंक क्या 26 साल हो गए, 26-27 साल हो गए, Almost 2 decades, more than 2 decades. नहीं 2 decades तो बहुत पहले के छेड़ यार, बट 26-27 साल होना है since I'm in the line. So I've been doing good work in television. You know, I did great work in Krishna Cottage. I did an amazing work with Balaji. Uske baad, I've done some really good work, and I try to keep my जो भी मैं characters choose करके उसको लेता हूँ, I see to it that वो मुझे as a person हल्का ना कर दे. तो but वो मजा नहीं आ रहा था कि कि यार something to bite my teeth into, ऐसा कैरेक्टर जो बोला यार हाँ यार ये करके मजा आया. एंड कमाल की बात यह है समेत कि पता नहीं होता, मुझसे पहले लोगों को आभास हो जाता है कि यार ये कहाँ होना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए. आई वॉज इन आई गो बैक स्कूल के टाइम पे, एंड मेरी एक ट्यूशन टीचर थी, उनका नाम मैं नाम भूल रहा हूँ अभी. तो वो हमेशा हरकत में नहीं, लेकिन मुझे उन सबसे दूसरे बच्चों से हल्का सा अच्छा ट्रीट करती थी, फॉर नो राइम और रीजन. ऐसा कुछ वो नहीं था, बट एक मुंडी काट के तो दिखेगा मुंडी का. अब ये ऐसा मुंडी काट के देखा, मुझे समझ आता है कि क्या बोल रही, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, लाइक शी वाज अ साउथ इंडियन. तो लेटर अंडरस्टूड कि शी मेंट क्लोज अप में टीवी में दिखेगा, मुंडी काट के दिखेगा, क्लोजअप में दिखेगा, इसका ऐसा होता है ना टेलीविजन में क्लोज. सो शी हैड दिस फीलिंग, आई डोंट नो व्हेन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल, आई एम टॉकिंग अबाउट 10th स्टैंडर्ड. यार आई गॉट इनटू थिंग इन व्हेन आई वाज 20 में आई डिड माय थिंग. सो कुछ 5-6 साल पहले शी हैड काइंड ऑफ प्रेडिक्टेड इट, एंड वंस आई गॉट इनटू द थिंग, सर हमेशा सब लोग बोलते थे कि सर माशाल्लाह अच्छे दिखते हो, आपको मूवी में होना चाहिए. मतलब होना तो चाहिए, लेकिन उसको सामने से आना भी तो चाहिए. एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड कंटेंट विद टेलीविजन. आई थिंक मूवीज हैपेंड वंस आई स्टॉप बीइंग कंटेंट विद टेलीविजन. आई थिंक दैट्स व्हाट आई कैन से. बट हाउ यू चोज लाइक टू बी एन एक्टर? किसी ने फोर्स किया या इट जस्ट केम? मतलब एक होता है कि हम स्ट्रगल स्टोरीज हैं सब एक्टर्स की, हम बाहर से आए थे, हमने इतने ये दिए. सो यू हैड अ सेम स्ट्रगल स्टोरी? और नहीं, ऐसा वाले स्ट्रगल स्टोरीज हैं, बिकॉज मैं मुंबई में ही पला बड़ा हूँ. पैदाइशी भले इंदौर की है, लेकिन मुंबई में हम लोग बचपन से रहे हैं, यहीं पढ़े हैं, यहीं बड़े हुए हैं. एंड एनी फैमिली मेंबर इनटू इंडस्ट्री? नो, none. But I'll tell you again, my first movie was Gajgamni. And MF हुसैन जो है वो मेरे नाना चचा लगते हैं. सो एंड हमारा काफ़ी मिलना जुलना होता था. एंड आई वॉज इन माई स्कूल एंड कॉलेज, आई वॉज ऑलवेज इन टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लाइक स्पोर्ट्स में था, डांसिंग, सिंगिंग, स्किट्स. एंड फिर कॉलेज में आया तो आई गॉट इनटू मॉडलिंग. मैंने ग्लैड्रेक्स किया, मैंने ग्रावियरा किया. Like, so I've been a part of the modeling scene also in my young days. And वो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, लेकिन हाँ, तो वो सब में था ही. और मकबूल शाह जो थे वो एक बार घर आए और उन्होंने बस से बैठे थे, हम लोग खाना खा रहे थे, एंड उन्होंने बोला कि एक रोल है, करोगे? अब मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे कुछ करना है क्या, मतलब एक्टिंग करनी है या नहीं करनी है. बोला, मेरे अम्मी ने बोला हाँ ठीक है जो सर. बोला कुछ नहीं, ऐसा है, छोटा सा एक भोला नाम का कैरेक्टर है,
वो एक ये फिल्म बना रहा हूँ गजगामनी, जिसके अंदर सूत्रधार है। तो मूवी होगी, फिर जहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा ट्रांजिशन है वहाँ पे ये आके ऐसा कुछ बोलेंगे, फिर ये मूवी होगी, फिर कुछ बोलेंगे, फिर ये मूवी होगी, ऐसा। तो बीच बीच में एक दो जगह पे आएंगे। सर हाँ ठीक है, अपन को क्या है यार, मतलब बैठे बैठे you're getting to be a part of history, right? It's history. तो ना ठीक है, तो चला गया ना, कुछ ज्यादा सोचा नहीं। अच्छा है, अच्छा लगता है। उस टाइम पे महबूब स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी, तो अदरवाइज नॉर्मल इंसान जाता नहीं है स्टूडियो के अंदर ना। तो यू एंटर्ड एंड देन यू वेंट टू द फिल्म सिटी। पहली बार उस टाइम पे तो फिल्म सिटी खाली होता था यार, जंगल, पूरा जंगल था इतना। तो फिल्म सिटी मतलब ऐसा लगता है कि आप कोई पार्क में जा रहे हो। इट वाज सो मच फन। हम लोग रिमेंबर हेलीपैड पे एक सॉन्ग सीक्वेंस था, और महबूब स्टूडियो में मेरा ये 2 जगह पे काम था मेरा। तो महबूब स्टूडियो में गया, इतना अच्छा लग रहा था टू बी अ पार्ट ऑफ दैट होल फीलिंग ऑफ ये स्टूडियो है, यहाँ पे लाइटिंग हो रही है, वो लगा हुआ है, सेट बने हुए हैं। एंड ऐसा लगा कि I've come back home। मुझे लगा कि मैं घर आ गया हूँ, यू नो। इट डिडंट फील लाइक अरे यार कहाँ हूँ यार, कोई है नहीं, खाली पूरा कोई दिख नहीं रहा है। बोला यार I've come back home। I just sat there, कुर्सी लेके मैं बस बैठा था, just soaking in the atmosphere। And मैं बोल रहा हूँ, अभी मुझे goosebumps हो रहे हैं। I can feel that also. You're remembering each and every scene of that. I'm telling you। तो फिर चेंज किया। तो 1-2 बार तो मैं शूटिंग से पहले चला गया था लाइटिंग देखने को, कि क्या कैसी हो रही है लाइटिंग, सबसे मिलने को वगैरह, ऐसा काम। देन उसके बाद द डे ऑफ शॉट आई वेंट देयर एंड ओके अली आपका बेटा आपका पहला शॉट है। तो मैं गया, कैमरा के सामने खड़ा हो गया, ओके यहाँ देखो, अच्छा यू नो लाइन था। अभी भी आई स्टिल हैव दैट थिंग, आई हैव केप्ट सम ऑफ द स्क्रिप्ट्स एंड ऑलरेडी, मतलब अभी भी रखा है मैंने। बोले ये लाइन है, मैंने बोल दी लाइन। अब मुझे लगा मुझे 3-4 बार बोलना पड़ेगा, पता नहीं कितना। फिर ओके डन। ऐसे वाह यार एक में हो गया, हाँ हो गया, आपको मिल गया, हाँ मिल गया। मगर इट वाज सो नाइव यार समय कि क्या कैसा बोलना है। बट इट वाज आई थिंक अ नेचुरल थिंग, नेचुरल नहीं बोला तो हो गया, ठीक है। आई थिंक दैट्स व्हाट ही वांटेड एंड ही गॉट इट। एंड तब उस टाइम पे मुझे लगा कि यार यहाँ होना मुझे, I need to be here. This is where I want to be, in front of the camera, amongst set. And so were you pampered on set? नहीं Because a family member himself. नहीं तो पहले इतने बड़े legend है वो। And Maqbul Shah was the only person I want to follow his in footsteps. सब लोग बोलते ना ये होता है वो होता, is him. The way he lived his life with so much life, he lived his life. He was very humble. He was very humble. अरे मतलब आप बता नहीं सकता हूँ यार। उस जमाने में कैमरास नहीं होते थे। Yeah. So I don't have many photographs with him. And because उस जमाने में तुम भी जानते हो कि everybody was living in the moment. ऐसा नहीं है ना कैमरा के अरे खींचो memories, सब memories आपकी यहाँ पे है। तो I have all the memories here. I don't have any memories on the photograph and all that, you know. अम्मी के है ऐसा, of course photographs घर पे हैं, लेकिन तो मुझे तो ये अफसोस होता है कि I did not click any pictures of him. Same I feel with Irfan Khan sir. Like I did a show with him, Mano Ya Na Mano. हाँ. I was there with him 6 months, but again we live in the moment. We live in the moment. आपके जहन में पूरा होगा, लेकिन like the way he used to talk, the way he used to walk and everything. Yeah. Such a great actor. मतलब आज तक मुझे उनके comparison का कोई दिखता नहीं. नहीं. And learned actor I would say. मतलब उनको सब पता रहता है कि कब क्या है. I think जिंदगी की समझ होना बहुत जरूरी है. He had that. जिंदगी की समझ होना जरूरी है. I think दिल के एक innocence. मैं बताओ समित, मैं हमेशा बोलता I'm a student of innocence. मैं भक्त हूँ innocence का. I try to keep innocence in my being. You know, I try not to, कोशिश करता हूँ जितनी हो सकता है, you know, like कि क्या होता है कि आप जब innocence रहते हो ना, you're very malleable रहते हो, आप बहुत ही malleable रहते हो, आप किस तरह से भी ढल सकते हो. अगर अंदर आपके वो आ जाता है ना मैं ऐसा हूँ, मैं हूँ,
तो जहां पे हल्के से अकड़ आती है तो मतलब वो जो मिट्टी है इट स्टार्ट्स टेकिंग फॉर्म, और फिर वो जैसे भी हो वो फॉर्म ले लेती है, देन यू कैन नॉट ढलो इनटू एनी अदर थिंग। तो मुझे लगता है कि वो इनोसेंस जो है वो बहुत हमारे आज के जमाने में वो खत्म होते जा रहा है। उनमें तो भरपूर थी, बिकॉज आई जस्ट रिमेम्बर वन, काफी इंसिडेंट है, बट जो हम बसरा स्टूडियो कांदिवली में शूट कर रहे थे, एंड मैं खान साहब को, जैसे मेरा काम होता है उनको स्क्रिप्ट देना, खान साहब ये आपकी स्क्रिप्ट है, आप पढ़िए और आप मुझे बस बता दीजिए कब आपको लेने आना। तो मैं रूम में गया, रूम में नहीं थे, बाहर वो एक पत्थर पे नीचे बैठे हैं आराम से, एंड आई टोल्ड मैंने, खान साहब आप इतने बड़े स्टार हैं, नीचे बैठे हैं। बोले तुझे पता है मैं ट्रेन में टॉयलेट के बाहर बैठ के मैंने ट्रैवल किया है वहाँ पे, तो ये तो बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी। और लेकिन यू स्टिल रिमेंबर दैट, बोलते वो अगर भूल गया ना तो ये सब चला जाएगा। एंड तब मुझे नहीं समझा उनकी बात कि ऐसा क्यों बोलते, बट नाउ आई रियलाइज कि वो जमीन से जुड़े रहना कितना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है। तो मकबूल साहब भी ऐसे ही थे। आप मतलब आई थिंक in towards the end, because of all the politics and everything, he had to leave India and he was I think he had Bahrain या कतार के अंदर चल रहा था ना। और उसके बाद फिर मैं मुलाकात हुई नहीं उनसे, बट जब तक यहाँ थे आप उनको देखते ना, मासूम बच्चा दिखता आपको चेहरा। I know I've seen him in JJ, वो एकदम ऐसे, और ऐसे लगेगा भी नहीं कि आपके सामने दी MF हुसैन खड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम्बल आते थे, उनका ऑरा इतना बड़ा होता था कि उनको बड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो यूं आते थे, मगर ऑरा इतना बड़ा था कि हुसैन साहब। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ हिज लाइंस, उसी कॉलेज में उनको किसी ने पूछा था कि आप इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बनाते, तो ही जस्ट टोल्ड मी पेंटिंग नहीं बनाता, मेरी पेंटिंग के पीछे जो मैं स्टोरी बताता हूँ वो इंटरेस्टिंग हुआ। एंड देन उसने पूछा मतलब क्या, तो बोलो आप खाली एक वाइट पेपर में उस पर रेड डॉट डाल दो, फिनिश्ड। वो भी पेंटिंग आप 1 लाख में बेच सकते हैं। इट्स लाइक हाउ, इट्स लाइक जस्ट उनको पूछो कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एंड वो एग्जांपल से आई वाज सो क्लियर। अमेजिंग ना, अमेजिंग। का जो थॉट प्रोसेस ही अलग है। सालों करते करने में, जैसा अगर आपने इरफान की बात की, इरफान साहब की बात की, मैं मकबूल की बात कर रहा हूँ, इट इज अबाउट प्रैक्टिसिंग द क्राफ्ट सो मच कि अब इमाम हुसैन जो थे वो जब घोड़ा बनाते थे, ऐसा नहीं कि यूं बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं, वो ये 4 लाइन ऐसा बनाते थे और घोड़ा बन जाता था। और घोड़े के अंदर आपको एनर्जी दिखती थी कि वो घोड़ा भाग रहा है या कूद रहा है या गैलप कर रहा है, यू नो। वो इट हैपेंस बिकॉज दैट एनर्जी ऑफ द थॉट प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड ओवर सो मेनी रेपिटेशंस थ्रू हिज ब्रश ऑनटू द कैनवस। द सेम थिंग विद इरफान साहब। इतना कर चुके, इतना जिंदगी जी चुके, इतने से लोगों से बात कर चुके होंगे वो कि इट बिकम्स इजी। मतलब उनकी भी सिमिलर लाइंस भी होती थी, तुझे पता है इसमें क्या लिखा है, मुझे पता है इसमें क्या लिखा है, ऑडियंस को नहीं पता है, वो वही समझेंगे जो मैं बोलूंगा, और मुझे बस करेक्ट बोलना है। हाउ वाज योर चाइल्डहुड? वाज इट ब्लेस्ड, गोल्डन स्पून? Oh yeah, अरे we are 3 siblings. I'm the eldest. I have a younger brother and a youngest. Eldest and the responsible one. Actually, होना तो वही चाहिए, लेकिन I was the most pampered of the lot. Yeah, मतलब my dad अब वो नहीं रहे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। So he used to pamper me a lot, but हमें प्यार वैसा नहीं, आओ बेटा आ जाओ गोद में बैठ, क्या खाएगा, वो वाला प्यार कभी नहीं था। मुझे लगता है हमारे टाइम के डैड्स ने कभी वो जैसे हम करते हैं वैसे तो कभी नहीं, वो वाला प्यार था ही नहीं। Till date I've never hugged my dad, मतलब आज तक भी। मैं एंड में I hugged him twice thrice, you know, हम लोगों ने बात किया, एंड में जाके मैंने उनको बोलना शुरू किया कि I love him, एंड में, you know, like उनके फौत से 4 साल पहले तक फिर बोलना शुरू किया। उससे पहले ना ऐसा टाइम था क्योंकि हम बिजी थे काम करने में, ना साथ में रहते थे, वो आते थे सलाम डैडी, बस ये करते। देन वी स्टार्टेड स्टेइंग फॉर सम टाइम विद अस इन द हाउस, तब जाके यू नो दिल में बोला अब बोलना चाहिए ना, अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, यू नो ही नीड्स टू नो दैट आई लव हिम, क्योंकि एक्सप्रेशन उस जमाने में था नहीं, अब जैसे जितना हम आप भी करते हैं। So it was a fabulous childhood. For some years we stayed in Dubai. I did my schooling in. So
early schooling was in Dubai. Then I did some schooling in a boarding school in Panchgani, St. Peter's के अंदर, जहाँ पे मैंने बहुत मस्ती की, बहुत मजे किया. I think everyone should send a child for at least 2-3 years to a boarding school. You know, एक लाइफ अलग है वो. फिर उसके बाद I came back, हम लोग फिर वाशी में रहे. वाशी के अंदर एक नॉर्मल एसएससी स्कूल के अंदर उस जमाने था आईजी बोर्ड, आईबी बोर्ड, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड. सीबीएसई भी बहुत कम था. इट वाज आईसीएसई और एसएससी. एंड हम लोग में एसएससी में था, मैं आईसीएसई में नहीं था, एसएससी में था. तो वहां पे नॉर्मल स्कूल थी, सेंट लॉरेंस नाम का था स्कूल इन वाशी. एंड we wanted to prove to ourselves. ऐसा नहीं कि, but I wanted to be there in everything. So I was in sports. I was there in things. So I was very active. You know, ऐसा नहीं बोलना पड़ता था. But I was only active in the places where I like to be active. मैं घर आने के बाद मैं एकदम पास हो जाता था, आराम लेटर हो बस. लेकिन बाहर निकलो स्कूल के अंदर या कुछ फंक्शन हो या कुछ ऐसा, I was all there. जाओ अपना फर्स्ट प्राइज मिल के आ गए, आराम से घर में लेटो. But yeah, but it was again. Our parents जो अमाउंट था उसके अंदर जितना मैक्सिमम दे सकते थे. उस जमाने में तो लकीली जो 100 रुपए था वो खींच के 1000 रुपए भी कब कर सकते थे. आज के जमाने में आप 1 लाख भी कमाओ तो ऐसा लगता है कि साला आपने 1000 रुपए कमाए. The moment you step out of the आपका house, 1000 रुपए खर्चा होता है. 3-4,000 तो दिन में मतलब हाँ, आप जैसा घर से बाहर निकलो 1000 रुपए पत्ती जानी है. तो उस जमाने में क्या 100 रुपए भी ऐसा लगता था कि यार आपने तो अच्छा से अच्छा खाना खाया. आज मैं जो हूं इज बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फूड वी ईटन एज किड्स. बिकॉज उस टाइम में खाना भी इतना शुरू होता था यार, सब खेलना खाना, यूज्ड टू लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट. तो आई डोंट हैव रिग्रेट्स ग्रोइंग अप यार, बिकॉज भले वी डिड नॉट इंडल्ज इन सो मेनी थिंग्स, बट जब भी इंडल्ज करते थे, जैसा केक आता था साल में 1 या 2 बार या 3 बार हम लोग तीनों के बर्थडे पे. अब तो महीने के अंदर 3 बार आता है केक. इसका बर्थडे है, कुछ नहीं तो ये मंगवा लो वो मंगवा. तो जब केक आता था इट वाज लाइक आज ईद है, ईद बनी है, राइट? आई थिंक यू वुड हैव आल्सो गॉन टू द सेम. हमारा जनरेशन के अंदर एवरीवन वुड हैव गॉन टू द सेम थिंग, बिकॉज उस टाइम पूरी मेंटालिटी पैसा भी हो तो सेव करना है. वो पता नहीं क्या है कि 1 रुपए में 100 रुपए में से 10 रुपए सेव कर लो. और एंड लाइक आई वुड से कि अब मैं कभी मांगता था जब स्कूल टुवर्ड्स द 10th स्टैंडर्ड में या 11th 12th के अंदर, जब मैं डैडी 100 रुपए चाहिए, तो ही वुड नॉट गिव 100 रुपए, ही वुड गिव 500 रुपीज टू मी. हम लोग खर्चा नहीं करते थे, वो अलग बात है, उतना 500 रुपया. बट हिज थिंग वाज कि नहीं पैसा रखना है, ऐसा पास में कुछ तो पास में रखो. 100 रुपए मारा, 500 रुपए दे के रखते थे. अब वो 500 कैसा निकाल के देते थे मुझे मालूम है, क्योंकि यार इनकम इतनी होती है, 3 बच्चे होते हैं. अब ऐसा मेरी एक बेटी है, मैं दूसरे बच्चे का सोच भी नहीं सकता अभी. तो सेम यू कैन नॉट थिंक, एटलीस्ट इन बॉम्बे यू कैन नॉट थिंक. तो इट वाज फन. 3 बच्चे थे, कुछ नहीं तो हम तीनों के अंदर मस्ती कर लेते थे. वर यू पैरेंटिफाइड सन? आई एम सॉरी, पैरेंटिफाइड सन? कि कुछ बच्चों का होता है ना, मुझे अपने डैड को प्रूव करना है कि, या मॉम को प्रूव करना है आई एम गुड इनफ, आई कैन डू थिंग्स. नहीं ऐसा नहीं था. ऐसा नहीं था. कुछ बच्चे होते हैं जिनको पेरेंट्स को खुश करना होता है, या मेरे डैड मेरे लिए अच्छा बोलेंगे, मेरी तारीफ करेंगे अगर मैं इस तरीके से बिहेव करूं या ये चीजें करूं. लकीली आई वाज अ वेरी नाइस चाइल्ड. मतलब वो बिहेवियर के चक्कर में मेरा कभी प्रॉब्लम था. तो हम सबको लगता है हम सब अच्छे ना अरे ask my mom, get her here and ask her. She said नहीं all the schools used to tell me I'm a nice kid. मस्ती करता था, अलग बात है, लेकिन I was a decent child. मैं ऐसा stupid मस्ती नहीं करता था. I was very heads on my shoulders वाले था कि हाँ देखता था ये मस्ती हल्की फुल्की तो ठीक है, कुछ ज्यादा मैं आप लोग अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते. I've been a very safe child. I've not been a very reckless child. तो but prove that I loved it कि जब मैंने एक्टिंग का बोला मेरे मॉम डैड को कि अब मैं इसमें ये लाइन में जाना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा तो वो हुआ कि क्यों, मतलब कि क्या है, कैसा होगा, कौन है वगैरह, यू नो, इज देयर एनीबॉडी. बोला नहीं, लेट गिव मी 2-3 साल. तो मैं डैड बोलते थे बेटा काम करना शुरू करो,
उस टाइम में 10,000 रुपये भी कमा लेते तो ऐसा होता था, अरे भाई महीने का। तो मतलब डैडी मुझे I somehow knew my worth at that point, even at that point of time, without earning a single rupee at that point of time. I still remember that this conversation very clearly. बोला कमा लो, अभी कमाना शुरू करो, and I'm talking about जब मैं 20-21 साल का था यार। हाँ, तब हमारे जनरेशन वही थी, 20-21 साल में टू स्टार्ट अर्निंग भाई, you can't sit at home। 3 साल में शादी होनी है आपकी, गेट सेटल्ड। हाँ, तो मैं बोला नहीं, मैं बोला अच्छा डैडी मुझे मालूम है कि and I still remember, I said, आप चाहते हो कि मैं 10,000 रुपये महीने का कमाऊं, मुझे मालूम है कि मैं 10,000 रुपये दिन का कमा सकता हूं। And I said it at that point when I did not even know समित। अब मैं कैसा बोल दिया, मुझे अभी भी होता है ऐसा कैसा बोल दिया मैंने, मतलब बोल दिया मैंने बात। I knew because I think I knew my worth कि 10,000 रुपये वाली आपकी वैल्यू तो है नहीं। You are definitely कुछ नहीं तो आप लाख रुपए तो कमाई लोगे, इतना तो कमा सकते हो। मतलब समटाइम्स ना बीइंग इग्नोरेंट ना इज अ बोन, दैट यू डोंट नो कि यार 10,000 रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है। तो आपके लिए 10,000 रुपए हो या लाख रुपए हो सेम ही हुआ, बिकॉज आपको मालूम नहीं कि कितनी मेहनत लगती है। तो आप लाख के लिए भी उतनी मेहनत करोगे या आपने सिर्फ अपना गोल ऊपर नीचे किया हुआ है, बराबर है, मेहनत आप उतनी करोगे, बराबर है कि नहीं। अगर मैं 10,000 सोच के कमाऊंगा, मेहनत तो मैं 10,000 के हिसाब से करूंगा। अगर मैं 10 लाख के हिसाब से करूंगा तो मेहनत तो उतनी ही करूंगा, लेकिन मेरे गोल यहाँ पे है। I'll be making that kind of money. So I think. But was he convinced on that? No, so he was. So 2-3 साल he allowed me कि अच्छा 1-2 साल देख लेते हैं, फिर नहीं हुआ तो फिर। But I guess वो डैड की पर्सनालिटी होती है। Like when even I joined this, I used to do internship and all. Same 18-19 साल में कोई पैसे तो मिलते नहीं थे। 500 रुपये आपको कन्वेंस हाथ में दिया जाता था, वो भी कभी मिले कभी नहीं मिले। My mom is like, what you are doing? मतलब कुछ तो ढंग का करो ये वो। तो 1 साल मैंने काम किया, पैसे नहीं आ रहे थे, then I pressurely मैंने एक जॉब ले ली। It was a good job, like I was getting 40,000 salary उस टाइम पे। Oh wow, okay. एक IT कंपनी में, and IT जब नया आया था। But then मैं 1 महीने में मैंने छोड़ दिया। तो लोग बोले अरे क्यों छोड़ रहे हो भाई? मैं मतलब घर आया and next day I was sleeping, मैंने नहीं, मेरे को नहीं जाना है, मैंने रिजाइन कर दिया। तो then my dad asked what happened? मैंने डैडी मेरा एक दिन भी मन नहीं लग रहा उधर, मुझे शूटिंग ही करना है, मेरे पास पैसे कम होंगे चलेगा, लेकिन मुझे वही करना है। वही करना है। तो डैडी, तब my dad told me, I still remember. So you also call your daddy? हाँ। My dad just told me, I give you 4 years. 4 years. 4 साल ना तुझसे इस घर में कोई पैसा मांगेगा, ना तुझसे कुछ पूछेगा। You can. And will support you. हाँ। Do whatever you want. But 4 साल के बाद, when you are 25, if I'm saying you have to leave it and join the business, and you have to join the business. I'm like done. वो दिन और आज का दिन I still कभी कभी पापा को थैंक यू बोलता हूँ कि डैडी थैंक यू सो मच। एंड द डे व्हेन लाइक मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था, एंड राजीव कपूर साहब, मुकेश खन्ना साहब, दे केम ऑन द बर्थडे, एंड उनका वो चेस्ट जो चौड़ा हो गया, मेरा बेटा लेकर आया इनको। सो दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि यार डैड ने जो मुझे 4 साल दिए थे, अगर वो नहीं देते तो क्या होता मेरे साथ। सो यू हैव टू लाइक दिस, लाइक यू रियलाइज दैट कि जो 2-3 साल दिए, लकीली जैसा कैसा करके आई गॉट इनटू द थिंग, आई स्टार्टेड डूइंग डीडी का शो, क्या हादसा क्या हकीकत, कयामत, क्या कहानी घर घर की। एंड जब लोग पहचानने लगे, यू नो, एंड माय डैड इज लाइक वेरी, बट ही वाज स्कैर्ड इन सेंस कि यार मेरा बेटा कुछ ना हो जाए, you know, it's a very because he knew me, मतलब he thought of me as a very vulnerable child, first kid, right? तो आपको मालूम है कि कैसा होता है पहला बच्चा का। He never had a problem with his second, मतलब my younger brother, and वो they'll handle themselves, but ये क्या है ना, ये थोड़ा सा नाजुक है, ऐसा नाजुक in sense कि we are more pampered, the first child is more you know, yes, अरे इसको कोई उल्टा ना बोल दे, कोई फायदा नहीं उठा, गैर फायदा ना उठा ले, तो he was very scared on that, but otherwise जैसा भी है फिर। And I've realized one thing, dads कभी बोलते नहीं है, सामने से आपकी तारीफ कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, बट उनके चेहरे पे समझ में आ जाता है कि वो खुश है या नाराज है, या वो सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड। मुझे सॉरी, बट मुझे ना कि चल डैडी मैं आपके साथ चलता हूँ, यहाँ पे जाते हैं, नहीं तू घर में बैठ, तेरी शक्ल देखेंगे तो खाली कुछ, यू नो, लाइक
उल्टा उल्टा बोल दिया या पैसे बढ़ा दिए या कुछ भी, तो तू घर में, तो ये मुझे इससे समझना पड़ता था कि ये प्यार है, वही इससे समझना पड़ता था कि ये प्यार है, कि भैया नहीं वो ही रिस्पेक्ट्स मी, लाइक्स मी, एंड वो नहीं चाहता, वो भाग लेंगे, वो भागम भागी करेंगे, बट ही वुड नॉट लेट मी डू द रनिंग अराउंड. वुड यू बिलीव दैट समवेयर? Yeah, because they love you. They don't want कि कोई कुछ हो जाए, हाँ, कोई फायदा ना उठा ले या कुछ ना कर ले. अभी भी जो मेरे माय ब्रदर सिस्टर्स दे हाउंड मी, बोला आप तो एकदम ऐसे राजा जैसे आपके जिंदगी है. No, because yes, कल परसों का ही इंसिडेंट है. मैं पापा से मिलने गया था, so I slept there only. हाँ. तो मेरा वॉलेट टेबल पे रख दिया होगा, तो उन्होंने देखा वॉलेट में कैश नहीं है, तो बट ही डिडंट न्यू कि मेरे पास जीपे है या कैश में निकाल लूंगा जाके, या मैं अभी बेटी को दे. मैं सुबह उठा तो वॉलेट में 5,000 थे, तो मैं बोला डैडी ये क्यों? तो तेरा वॉलेट खाली है. अरे मैं बोला पैसे हैं मेरे पास. So cute यार. So मुझे समझ आया पापा आज भी उतना सोचते हैं कि बच्चे का वॉलेट खाली नहीं होना चाहिए. So एक सीन था ना बॉर्डर 2 के अंदर, जहाँ पे दलजीत जो है, Yeah. you remember? Yeah. Oh, he becomes a pilot, he becomes a thing in the Air Force and all that, and he's now leaving for the thing. तो उसका बाप पीछे आके उसको हाथ में like Yeah. पैसे देता है. So I think this is the father son thing यार, कि they always want, the fathers always want the sons especially. Daughters के लिए एक अलग Yeah. तरीका होता है, sons के लिए एक अलग तरीका होता है. मतलब मैं तो जाकिर साहब की लाइन से बहुत रिलेट करता हूँ कि आपके पेरेंट्स अगर आपके अगेंस्ट हैं आपके करियर के, तो वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते. सो जब मैंने वो सुना था, आई कैन रिलेट. माय डैड मॉम नेवर वाज नेवर अगेंस्ट दिस लाइन. दे जस्ट वांटेड कि यू शुड अर्न. बट हर चीज का एक तरीका होता है ना. अब ये लाइन में भी जो है, अगर आप उसको ऐसा ना देखो, प्रॉब्लम क्या है, हमारे नजरिए में थी, उस जमाने नजरिए में थी कि यार पहले दिन से ही, मतलब अगले 2 साल के अंदर वो उसको एक इतना आना चाहिए ना, ऑल दैट. नाउ व्हेन यू सिट नाउ, अभी इस टाइम पे जब मैं, जो उम्र हो गई है मेरी, बोलते हैं कि 20-25 साल में मेहनत करो, फल के अच्छा मत करो. मेहनत करो, जो चीज में कर रहे हो ना, सिर्फ मेहनत करो. आपको सोचते नहीं है कि पैसे आएंगे नहीं आएंगे, बिकॉज यू गॉट यंग, यू गॉट यूथ ऑन योर साइड, यू गॉट एनर्जी ऑन योर साइड. तो आप मेहनत करो, 30 तक थोड़ा सेटल हो जाओगे आप, थोड़ा बहुत, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत. अगर ज्यादा सेटल हो गए तो फिर आप सेटल हो जाते हो. और फिर देन बाय 40 यू हैव लिव्ड लाइफ. आपने 20 जी है, 30 जिया है, 40 का साल जिया है, डेकेड जिया है. यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग लाइफ at that point of time, कि अच्छा क्या अच्छा है. And then you see the bigger pattern, like जैसा जब मैं जवान तो अभी भी हूँ, यंग था, 24-25 साल का, आप डिसीजन जो ले रहे थे, आपको पता नहीं था कि ये सही है कि गलत है. आप कभी कभार जोश में आके लेते थे, कभी आप सोच के लेते थे, लेकिन आपको मालूम नहीं था कि सही है गलत है. फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर कोई बोल दे कि यार मैंने सही डिसीजन, अगर सही निकल जाता है वो अलग बात है. आपके अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है कि आप बोल सकते हो कि ये सही डिसीजन है, गलत डिसीजन है. तो आप लेते हो डिसीजन, आपका जिंदगी यूं जा रही है, एक डिसीजन गया, उससे आपकी ट्रेजेक्टरी यूं चेंज हो गई. फिर आगे जाके आपने एक और डिसीजन लिया, उससे आपकी ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई. यूं करके देयर आर, अभी तक यू कैन, आपकी जिंदगी में आप देखोगे देयर विल बी लाइक 4-5 पॉइंट्स इन लाइफ, मेन डिसीजन पॉइंट्स. आपने बोला अच्छा ये डिसीजन लिया तो ये हुआ, ये डिसीजन लिया तो ये हुआ तो ये, और आज मैं इसकी वजह से यहाँ पे हूँ. मगर वो ओवर द इयर्स आएगा ना. आप 40-45 साल के हो गए तभी आएगा ना. आप 25 साल में तो अब बोल सकते अच्छा मैंने ये डिसीजन, आप तो क्या डिसीजन लिया, आप तो अभी तक पढ़ ही रहे थे. बट यू नेवर फील लाइक दैट कि हम उस टाइम, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन इवन आई वाज यंग, हम कोई डिसीजन ले लेते थे, वी यूज्ड टू फील कि यार ये लॉजिक नहीं लगाते थे. आई वुड से लॉजिक नहीं लगाते थे, बस ये करना है तो करना है, करके देखेंगे. अभी इस एज में जब मैं डिसीजन लेता हूँ, या क्योंकि मेरे पास मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉटर बॉम्बे में रह रहे हैं, उसका एजुकेशन, ये सो आई बिकम वेरी कैलकुलेटिव. बट समटाइम्स जब मैं अकेले में बैठता हूँ, वो लाइफ अच्छी थी यार, जब सोचना नहीं पड़ता था, डिसीजन लेना है आपको और करो. अब मैं क्यों इतना सोचता हूँ ना, मैं कभी कभी वो सोचने लगा, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है ना. अगर आप अकेले हो तो आप लो, मगर फिर हर एक चीज, एवरीथिंग हैज अ प्रोज एंड कॉन्स. अगर आप फैमिली नहीं होती
तो आपकी मेंटल स्थिति भी वैसी नहीं होती। जो कामनेस आ गई है वो बिकॉज आपकी शादी हो गई है, आपके पास आप घर में बीवी है, बच्ची है, तो जो थकान जाके फिर आप घर में निकालते हो। अगर आप कोई है नहीं घर में, तो जो फ्रस्ट्रेशन आप बाहर है वो घर में लाके आप किसके साथ शेयर करोगे? वही तो बट उसमें क्या है, यू डोंट हैव एनी बैगेज, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। या तो आप जोश में आके गलत डिसीजन भी ले सकते हो, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई नो तो हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स है। तो आई थिंक जहां पे हो वहां पे आपको होना है और आपको खुश रहना चाहिए। जहां पे कोई भी है, आप हो, मैं हूं, हम सब हैं, हमें खुश रहना चाहिए। आई थिंक जहां पे, बिकॉज नाउ तो आई टेल द यंगर वंस कि यू गेट टू लिव लाइफ टिल 25 मैक्स 30, उसमें तुम अपने करियर पाथ, अपना पैशन चूज करो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। मैं तो बोल रहा हूँ एवरीवन शुड लाइक राजपाल यादव ने कहा था, कोई एक मैंने पॉडकास्ट में देखा था कि अगर नहीं, राजपाल नहीं, किसी ने बोला, हाँ, मनोज बाजपेयी, नहीं, तो ये बोला था कि अगर आप बोलो कि आपकी जिंदगी खराब है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, तो गलत सोच रहे हो। स्ट्रगल ही नहीं है। क्या स्ट्रगल क्या है? आप काम नहीं करो वो स्ट्रगल, मतलब आपको लगता है कि सिर्फ वो अचीवमेंट है, लेकिन यू आर गेटिंग टू डू व्हाट यू वांट टू डू ना, तो टेक इट एज अ एंजॉयमेंट। विजय राज साहब हैज टोल्ड इट। अच्छा, जब उनको पूछा गया था कि आपने बहुत स्ट्रगल किया, बोला जो मुझे करना था मैं वो कर रहा था। स्ट्रगल कहाँ है? उसमें पैसे कम मिल रहे थे, बट बस उतना ही था, बट मैं तो एंजॉय कर रहा था। हमारा नजरिया सब ऐसा हो गया कि यार जब तक बिकॉज हम देखते हैं ये साहब इतना कमा रहे हैं, वो साहब इतना कर रहे हैं, ये नया लड़का आके ये इतना कर रहा है, जो भी है, that doesn't define, that should not define you। आपने कमा रहा, अभी ठीक है ना, कि अभी कौन सी जिंदगी आजकल खत्म हो जाएगी? आई थिंक वन शुड टेक लाइफ एज टेस्ट मैच। मैं तो लाइफ को टेस्ट मैच की तरह लेता हूँ कि ठीक है, आप टुकु खेलते रहो, कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे जल्दबाजी नहीं है। लाइक आई हैव सीन मेनी पीपल जो मेरे साथ में भी आए हैं, वो जल्दी करना था, ये करना था, वो करना था। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम गेटिंग माई ड्यू नाउ, आई एम ब्लूमिंग नाउ। मतलब नॉट दैट आई डिडंट ब्लूम देन, बट आई टुक माई टाइम। आई वाज देयर। आप देखो, मेरा ज्यादा यू विल नॉट सी मी इन द न्यूज सो मेनी टाइम्स, एंड दैट वाज बाय चॉइस, बिकॉज मैं चाहता हूं, मैं क्या, आई डोंट वांट टू से कि अच्छा अब मैं आज खाने के लिए यहाँ जाने वाला हूँ, आज मैं ये शॉपिंग करने जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ शॉपिंग चलो, ये सब मुझे नहीं करना था। आई वांटेड टू कीप माय पर्सनल लाइफ पर्सनल, एंड तो आई थिंक बाय चॉइस, एवरीवन हैज अ चॉइस। हर कोई अपनी चॉइस के हिसाब से जिंदगी जीता है, और जो चॉइसेस है उसके हिसाब से आपकी जिंदगी बनती है, एंड यू लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो आज आपको दिख रहे हैं कि आज है, मतलब जब जैसे कि लाइमलाइट में है, मगर उनकी जिंदगी भी ऐसी हो जाती है, वो कॉन्स्टेंटली आराम नहीं करते होते। वो घर के अंदर, अच्छा ओके लिसन, अभी हमें ना क्या करना पड़ेगा, अच्छा ड्रेस वाले को बुलाओ, वी नीड टू गेट ड्रेस, फिर हमें फोटो क्लिक करने का है, उसके बाद वो क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के लिए हमें क्या बोलते हैं, घर सजाने का है, उसके लिए वो वीडियो वाले को बुलाओ, हम शूट करेंगे क्रिसमस स्पेशल। ये सब दिमाग चलाना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली लिविंग अ प्रोडक्शन लाइफ इन योर रियल लाइफ। हु वुड वांट टू लिव अ रियल प्रोडक्शन लाइफ इन योर रियल लाइफ? आप हो, जब कुछ आता है, जैसे बॉर्डर 2 आया, ये आया हुआ है, मैं हूँ यहाँ पे, आप लोग ने बुलाया मुझे, एंड इतनी इज्जत दी कि मैं साथ में बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, और कल को कुछ और आएगा, उसके लिए कुछ और के लिए बुलाएंगे आप लोग। अब नहीं है तो जबरदस्ती क्यों बुलाओगे? आप भी क्यों बुलाओगे, मैं भी क्यों बोलूंगा? तब ये ना कि लेट्स डू अ पॉडकास्ट। But any insecurities in you? Have you ever felt insecure with your co-actors या with your friends? Any point of time कि? तो I have never felt insecure about my work. No, I don't feel insecure about myself, like as an actor. कभी नहीं, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। लेकिन मेरा हमेशा से ये रहा है कि एक्टर की जिंदगी ना हमेशा दूसरे के भरोसे पे रहती है, कि आप जब तक नहीं बुलाओगे मुझे, मेरा कुछ है नहीं काम करने का। सो एन एक्टर डज नॉट
पहली बात तो नो वन शुड बी पैसिव, एवरीवन शुड बी एक्टिव। एक्टर को एक्टिव नहीं होना, एक्टर को प्रोएक्टिव होना पड़ता है, प्रोएक्टिव रहना चाहिए। उससे मतलब यह है कि खुद से उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए, यू नो। एंड ये समझ में मेरी अभी आया है बहुत, जिन्होंने ये चीज बहुत पहले समझ ली उनके लिए उनको बधाई। शाहरुख साहब ने ये चीज बहुत पहले समझ ली, उन्होंने तो शुरुआत में समझ ली थी, उन्होंने तो शुरुआत में समझ ली थी। अब ऐसा होता है ना कि एवरीबडी मूव्स इन द ओन पेस। कोई क्या होता है, कोई अपनी जो मोमबत्ती है वो दोनों साइड से जलाता है और कम जीता है, मगर वो 25 साल में 50 साल की जिंदगी जी रहता है। कोई जो है वो 80 साल जीता है, लेकिन उसका जो जॉय द वीवर है, जो जिंदगी जीने का वो है, वो एक नॉर्मल रहता है। इट्स नॉट लाइक ऐसा कि जोश में जी लिया फिर क्रैश आया और फिर आउट हो गया, ऐसा नहीं है। किसका सक्सेस स्टार्टिंग में आता है, किसका सक्सेस बाद में आता है। तो आई थिंक यू शुड जस्ट नो योरसेल्फ and you should live your life as to how you should be. Once Khan Saab said, actors generally, like for himself also and for some of the actors also, मैं उस दिन से डरता हूँ जब ये सब चला जाएगा, and I have to sit at home sometime. So see that's the thing. That's what I'm saying. The actors need to be proactive. कि अब वो जमाना खत्म हो गया, क्योंकि इतने सारे लोग आ गए हैं, भले प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, लेकिन अब मीडियोक्रिटी भी काफी सारी आ गई है ना। अभी आप देखो कि इतना सारा काम हो रहा है। पहले जब काम होता था तो डायरेक्टर चुन के आता था, जो डायरेक्टर आता था वो एक्टर को भी चुन के लेता था। स्टोरी भी जो बनती थी वो इतने लोग मेहनत करते थे उस पे, यू नो। पहले के शोज आप देखो कितने काम होते थे। आई तो स्टिल रिमेम्बर, मानो या ना मानो कहानी, मतलब है ना, कितना सारा। अब देखो भरपूर आ गए हैं, इतने सारे लोग आ गए, अब सबको काम चाहिए, सबको काम मिलता भी है, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी खत्म हो जाती है। और फिर ये था कि मैं एक शो कर रहा था, कुछ साल तक किया मैंने। अब जब शो कर रहे हो एंड यू बिकम कंप्लेसेंट, बिकॉज आपको मालूम है कि भैया आपका 10-15 दिन 12 दिन इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, इतना अमाउंट आ रहा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट महीने का आ रहा है। तो कुछ हद तक तो मुझे अच्छा लगा था जब स्टार्टिंग का, जब कोई शो में आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा शो में, तो मुझे अच्छा लगा था कि यार हाँ, आपको अभी सोचना नहीं है कि अगला काम कहाँ से आएगा, अगला काम के लिए कहाँ ऑडिशन देना का, ये है वो। हाँ यार ना, बोट अभी ऑटो मोड पे है, अब चलेगा। 1-2 साल के बाद फिर ऐसा लगने लगा कि यार क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी से, क्या कर रहा हूँ। लाइक जस्ट बिकॉज पर डे मिल रहा है पूरा, सामने वाला आपकी इज्जत तो मतलब कर रहा है, बट आपको पूरा दिन आके बिठा रहा, आपको पूरा दिन बैठना पड़ रहा है, यू नो। आपको आपका काम भले 5 मिनट का हो या 2 घंटे का, यू हैव टू सिट देयर फॉर द फुल डे। व्हाट इज योर से इन दैट? आप तो इट स्टार्टेड ईटिंग मी फ्रॉम इनसाइड कि भैया आप क्या कर रहे हो आपकी जिंदगी के साथ। आपकी जिंदगी 2 साल 3 साल तो निकल गए, और ये शो जब तक चलेगा, जब तक ये कैरेक्टर चलेगा या जो भी है, वो उतनी जिंदगी निकलती जाएगी आपकी। तो आई थिंक दूसरे तीसरे साल से वो खरीदना शुरू हो गया कि यार व्हाट एम आई डूइंग एंड देन आई जस्ट लेफ्ट इट टू द डिवाइन, बिकॉज one cannot get out of certain situations. So by divine design, it happened that I came out of the show, and uske baad se there's no looking back. I've just done great work. I've done small work, but great. Monies have been good. The characters have been good. Ahilya se shuru kiya tha. After that, the show I got out of. Uske baad Ahilya Bai se shuru kiya tha. I did a great character. Then 2-3 काम किए मैंने, फिर then a movie happened. Then ये साल has been so good that starting of the year border to release हुई। अब ये महीने के अंदर 2 shows Amazon के अंदर, अमर विश्वास और शिमारू का दिल धोखा डिजायर, and people loving it and I'm getting enough praises for it. अब उसके वो देख के 50 लोगों ने और फोन किया है। So you have to take that risk. You have to be a little proactive in taking some risks, and proactive also in starting something different. तो क्या हुआ जब मैं वहां से निकला, then I started off with my voicing career also.
तो Okay. now I do voicing for English films, हिंदी आवाज में. अभी मेरी एक मूवी आई है मर्सी, अगर आपको मालूम है मर्सी, उसमें आई एम प्लेइंग द मेन एंटागनिस्ट. तो that's what I'm saying about being proactive, कि वहां से निकला जहां पे आप stop being complacent कि हाँ ठीक है ना यार इतना आ रहा है, and you take the risk. भले 2-3 महीने जाते हैं because आपको मालूम how the cycle functions in the industry. But I am getting rewarded now, and I still want to take a proactive risk, and maybe I'll do something else in life, you know, apart from acting. But then this film happened, Krishna Cottage, a huge hit. हाँ. Such a have you ever felt कि यार ये फिल्म तो एक होता है जैसे I've been working since 15-17 years now. शूट के पहले दिन ही मुझे पता चल जाता है, मतलब एक आइडिया तो लग जाता है कि अच्छा जा रहा है खराब जा रहा है. बेसिक इंट्यूशन आता है. हाँ. तो मेरे ख्याल से स्पॉट बॉय को भी आ जाता होगा, सबको आ जाता है कि ये अच्छा जा रहा है. सबको आज के जमाने में सब लोग ऐसे हो गए कि सबको मालूम पड़ेगा कि शो ना स्टार्टिंग हुआ ओके नहीं चलेगा, स्टार्टिंग हुआ एक हफ्ते के अंदर बोलता है ये 3 महीने चलने वाला है. हाँ वो ये 6 महीने में चलने वाला है. सबको मालूम पड़ जाता है, स्पॉट बॉय को भी मालूम पड़ जाता है. So Krishna Cottage जब मूवी थी, all TV stars, they were all TV. Yes, absolutely. No doubt. Yes. उस टाइम के TV stars थे. And सारे. But have you ever felt यार इसमें मूवी स्टार एक भी नहीं, सारे टीवी स्टार्स, ये फिल्म चले नहीं चले मेरा क्या होगा? देखो क्या होता है ना, सिर्फ पैसा मिल रहा है तो कर नहीं, पैसे मिल रहा है, पैसे की बात भी नहीं थी. It was just कि you're getting a chance. See, I was at that point of time I was so new to the industry कि मूवी में मुझे बोल दिया मूवी में आना, मैं तो भाई मुफ्त में बुला लो, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. आपने कंसिडर किया मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. वो तो लकीली कैरेक्टर हो गया. बहुत सारे लोग देखते हैं अभी भी बोलते हैं कबीर 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 कबीर. इट फील्स नाइस. बॉर्डर टू आने से पहले तक तो इट वाज, लोग यूज्ड टू वॉच एंड से अरे यार, एंड इट्स सच अ कल्ट फिल्म कृष्णा कॉटेज. साला हर बार जी पे दिखती है. सैटेलाइट पे तो बहुत बड़ी हिट है वो. बट इट्स लाइक इट्स बिकम अ कल्ट ऑन द सैटेलाइट थिंग यार. एंड बोलते बहुत अच्छी फिल्म है. एंड आपको बोलूं मैं अभी तक पूरी मूवी बैठ के एक साथ नहीं देखी. We have seen it many times. So मैंने अभी तक पूरी मूवी एक साथ बैठ, लाइक स्टार्टिंग लेके एक साथ पूरा. So I don't know the full movie in one go. बोला हाँ ठीक है ना यार, मैं लाइक इट्स लाइक अपनी चीज है तो you take it for granted, वैसा वाला चीज है. तो what works more for you, power dynamics or humble dynamic? मतलब मैं जो करता हूँ या जो लोग मुझसे करते हैं? आप लोग कैसे चाहते हैं आपकी लाइफ में, पावर डायनेमिक से आपके पास रहे या एक लव डायनेमिक से? I mean to say, for example, I think it's my I never show power dynamics. I never show power. It's always my humble dynamics. Because you can show it at the position you have. You are like. आपने इतना बोला बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि पावर डायनामिक्स वो लोग दिखाते हैं जिनको अपनी चीजों से खोने से खतरा होता है, डर होता है. वो डर को मतलब वो कमतरी को छुपाने के लिए लोग पावर दिखाते हैं. अगर उनके अंदर वो चीज है नहीं, खोखले हैं अंदर से, तो खोखलापन छुपाने को वो लोग पावर दिखाते हैं. या यू नो जो बोलते हैं ना वो स्टिल रिवर्स स्टिल वाटर्स रन डीप. जो भी अंदर से भरपूर होगा वो ज्यादा आवाज नहीं करेगा ज्यादा. एंड आई ट्रूली बिलीव इन दैट बिकॉज मैंने बोला कि मेरे अंदर बहुत डीप डेप्थ है, बट आई लाइक टू बी मोर कामर, नॉट गेट यू नो जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं, गेट मी दिस, डू दैट, वो सब दिखाना होता है ना. बिकॉज अभी when you walk in, अगर सब लोग मुझे अच्छे से मिल रहे हैं, आप मुझे अच्छे से मिले, सब लोग अच्छे से मिले, तो ना सर पानी ला, अच्छा वो मैं क्यों बोलूंगा? इट्स सो स्टूपिड नो. तो आई थिंक अगर हम लोग सुनिए जरा यार, पानी ये भी काम करता है, पानी ला, वो भी काम करेगा, लेकिन what impression have I left on him and the other people? It's as simple as that. I like to leave good impressions on people. Any incident in your life you remember with your co-actors, your senior actors, your directors, from which you have learned and you want to share? जो आज भी आप फॉलो करते हैं, जैसे इरफान साहब का मैंने बताया कि I still follow that.
एकदम से अभी से ऑन टॉप ऑफ माई हेड तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, but I just keep on learning from people. I constantly I'm like a sponge. I'm like a sponge. I just constantly like to imbibe from and not only people. I like to imbibe from everything, from living things and non-living things. From the way this is kept here, from the way this is kept here as a prop. I'm constantly absorbing. तो आई थिंक वो मेरी खासियत है. बहुत सारे लोगों ने कुछ बोला होगा, आई एम श्योर, मगर ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा. हाँ, मकबूल चाका है, बिकॉज लाइक दैट्स द ओनली पर्सन. तो वो उन्होंने काफी सारी चीजें कही थी, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी कही थी जो मुझे अच्छा लगता है कि कभी कभार आप जो करना चाहते हो कोई भी चीज, लाइक वो अगर पेंटिंग की बात कर रहे थे, तो कोई पेंटिंग है तो बोलते मैं कभी कभार जो पेंटिंग है ना, करते करते उसमें जानबूझ के आई विल डिस्ट्रॉय द पेंटिंग. बिकॉज जब तक मैं जान रहा हूं मैं क्या करना चाहता हूं, इट्स प्रेडिक्टेबल, कि मुझे मालूम है कि आए. बट वंस आई डिस्ट्रॉयड मतलब ऐसा नहीं कि इसको फाड़ दिया. डिस्ट्रॉय मतलब जबरदस्ती कुछ लाइन यूं टेढ़ा मेढ़ी खींच दी. दैट इज अननोन, दैट इज अनसीन. उससे क्या होता है, पॉसिबिलिटीज ओपन अप. तो अभी जब तक मैं ये 2 लाइन यूं ही बना रहा हूं, मुझे मालूम अच्छा मुझे बोर्ड बनानी है, ठीक है. अब मैं साले में यूं ऐसे लेके यूं कुछ उल्टा उल्टा कर दूंगा ऐसा. अब मैं थोड़ा पीछे हटके देखूंगा तो ये आग बन सकती है. आप सोच रहे हो कि बोर्ड की पेंटिंग बनेगी, लेकिन यूं कर दिया तो वो सडनली उसको उल्टा मैंने कर दिया तो आग बन गई, जो मैंने सोचा भी नहीं था. अब पीछे हट के देखूंगा तो ये तो आंख है यार. देन आई पेंट एंड बिकम्स अ डिफरेंट पेंटिंग ऑल टुगेदर. दैट पेंटिंग इज क्रिएटिविटी एट इट्स फाइनेस्ट, बिकॉज वो आपने सोची नहीं, वो there's a connection between the divine and you, through you, that's appeared. That is something which I imbibe in my life. Now कुछ हद तक वो अच्छा रहता है, कुछ हद तक वो खराबा भी करता है, because कोई चीज अच्छी हो every time आप नहीं कर सकते, every time you cannot do it. You understanding? अब हर बार नहीं कर सकते, लेकिन बट वो अब आदत लग जाती है कि यार कोई अच्छा जा रहा है तो फिर आप उंगली कर लो, देखें क्या होता है, नयापन क्या होता है. तो मैं सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं कर रहा, I'm just talking in daily life also, ऐसा कुछ है. But so this creativity through destruction, that is what he had mentioned. अली भाई, मेरा ना एक पर्सनल जेलेसी है. मतलब मैं अपने फ्रेंड्स को भी पूछता हूँ, जो इंडस्ट्री के भी हैं और जो बाहर के भी हैं, कि फॉर जो क्रिएटिविटी है वो सारा एक मुस्लिम रिलीजन के पास है. आई एम बिग फैन ऑफ नुसरत फतेह अली खान साहब, हुसैन साहब, मजनू साहब, देन अपना रजा मासूम साहब, देन अपने 3 खान्स, देन सिंगर्स में रफी साहब का तो मुझे नहीं लगता आज भी कोई कंपटीशन है. बिल्कुल आई लिसन टू हिम, इट्स लाइक डिफरेंट. साईं बाबा जितना अच्छा वो गा सकते हैं उतना तो मैं कोई नहीं गा सकता. यस यस, एब्सोल्युटली. आपको बचपन से ये कुछ दिया जाता है क्या, कुछ खिलाया जाता है, पिलाया जाता है? नहीं, एक्चुअली आई डोंट नो यार. मतलब बेस्ट ऑफ शायर्स और उर्दू शायर. आपने बहुत बड़ी बात कह दी है. यू कैन गेट फ्लैक्स फॉर इट यार. बोले ऐसा कैसा, हमारे हिंदुओं के पास नहीं है, कोई भी उठ के बोल सकता है. नहीं, दे आर आल्सो क्रिएटिव, बट हाँ, आई नो व्हाट मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो. आई डोंट नो अबाउट क्या. हाँ, आप जो नाम सुनोगे तो आपको सिर्फ मुसलमान ज्यादा नाम ज्यादा. नाउ रिसेंट में अभी जाकिर खान साहब जो करते हैं, मतलब जो स्टैंड अप कॉमेडियन, ही इज सुपर्ब. लाइक ऐसा लगा जिंदगी घोट के पी ली है. मैं अपनी वाइफ से भी कहीं बोलता हूँ, यार इनको क्या पढ़ाया जाता है यार बचपन में, कि इतना टैलेंट कहाँ से आता है? आई डोंट नो. मतलब यार ये तो मैंने कभी मतलब हाँ सोचा है, बट क्यों होता है ये नहीं सोचा है मैंने. बट जैसे शायर भी आप देखो, मोस्ट ऑफ देम आर मुस्लिम्स, हाँ, जो अच्छा लिखते हैं. हाँ, बट आपका जगजीत सिंह भी है, यू नो, फिर आपके पास बहुत सारे हिंदी राइटर्स भी हैं. ऐसा है. लेकिन आई डोंट नो, मतलब आई थिंक उर्दू जुबान है और मुस्लिम, देयर इज अ रोमांस टू दैट थिंग.
इट्स अ रोमांस, इट्स आई थिंक वो जबान काफी, देखो उर्दू जबान जो है ना वो हिंदुस्तानी जबान है, वो yeah इट्स नॉट अ मुस्लिम जबान, इट्स नॉट अ हिंदू जबान, इट्स अ हिंदुस्तानी जबान। वो पैदा हुई थी इंडिया में, और वो उसकी वो जो है ना, जो राइटिंग जो वो है वो उर्दू, वो अरबिक है। इसका जो 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 लिखने का जो वो है वो अरबिक है, पता है, तो जबान जो है वो उर्दू, वो तो। लेकिन आप पुराने आप एक्टर्स देखो, जितने भी आप सुनील दत्त साहब को देखो, कितने भी पुराने नॉन मुस्लिम एक्टर्स आप देख लो, वो सब, धर्मेंद्र साहब, वो लास्ट तक में वो सिर्फ वो उर्दू में लिखता था। yes नॉट बिकॉज वो, बट एक है, आई थिंक देयर इज अ रोमांस टू दैट होल सूफीज्म, देयर इज अ रोमांस टू द होल आइडिया ऑफ थिंग, एंड not like I don't put any other religion on, but I think Islam बहुत ही ये radicalize करते हैं, अलग बात है, लेकिन it's a very simple religion, बहुत ही प्यार वाला religion है, बहुत talented है ये। हाँ, और कमाल की बात है, मुझे सुनने में आया कि सुनने में मतलब क्या, मुझे बोला गया नहीं, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे उसमें ये नहीं बजाने का, वो नहीं करने का, दोनों साइड से ढोल के, एक साइड से आप डफली बजा सकते हो बिकॉज एक साइड खुला है, तो अब देयर कुड बी साइंटिफिक रीजंस फॉर नॉट प्लेइंग ऑल दोस थिंग्स, गिटार नहीं बजाने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, फलाना डांस नहीं करने का, लेकिन सबसे ज्यादा जो शायद रीजन वही है। आई थिंक बात करते करते शायद मुझे ये आया है क्लिक कि मनाही है इसके अंदर, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, और ज्यादा रोमांस टुवर्ड्स दैट थिंग बढ़ता है। जैसा अगर आपको बोलो कल से सिगरेट नहीं पीना, अगर आप पीते हो नहीं पीना, यार कैसा क्या है, क्यों है सिगरेट नहीं पीना, आप चाहे छुप छुप के पियोगे, यू नो, तो आई थिंक रोमांस बिकम्स मोर इफ इट्स prohibited, I guess. Because recently I happened to work with greatest of the legend Anandji Bhai on one of the songs he was composing, and he is 92 now, but morning 7 से लेकर रात को 12 बजे तक मैंने उनको बैठते हुए नहीं देखा, and we were working। मैं आनंद जी भाई से भी ये डिस्कस कर रहा था, बोला आप इतने साल से इंडस्ट्री में, आपको ये कभी नहीं लगा? तो बोलते हैं मतलब आज तक तो ये मुझे भी नहीं समझ आया कि ये क्या चीज़ है। एंड द मोस्ट रोमांटिक लाइन ऑफ आर बॉलीवुड अगर मैं बोलूँ, एंड सब मानते हैं इसको, मजरू साहब से बेटर किसी ने नहीं दिया, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन का। वो लाइन आज भी कोई लिरिसिस्ट लिख कर दिखा दे, the way he described the beauty in that two lines. So even Zinat ma'am told that कि the most romantic, आज तक वैसी लाइन कोई नहीं लिखता। So मैं हमेशा सोचता है यार, इनको क्या बचपन में पढ़ाया जाता है कुछ, या सिंगिंग में डाला जाता है, कुछ कराया जाता है ड्रामा में? हाँ, मतलब I don't know, it's the divine intervention, जैसा जो हमारे जो A.R. रहमान साहब हैं। हाँ, रहमान साहब, मतलब अभी तो चलो जो पॉलिटिकल चल रहा है वो तो that's a different thing. That's stupid. That's let's not get into but that. the creations that he have created, and अब not to be very thing, but when he converted, they said he after his conversion, after हम लोग तो उसको conversion नहीं बोलते उसको, anyway, तो after his conversion they say he became the A.R. Rahman that he became. That's वो खुद ही बोला, उन्होंने बोला कि मेरे रिवर्ट, हम लोग रिवर्ट बोलते हैं, हम लोग कन्वर्ट नहीं बोलते, हम लोग रिवर्ट, बिकॉज I say everybody born is a Muslim, but Muslim doesn't mean Islam. He's not understand अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ मैं, so I'm not saying he's a Muslim in sense. What does Muslim mean? A person living by the way of the Lord. मतलब ऊपर वाले के जीने के तरीके से जीना उसको मुस्लिम बोलते हैं। एक मुसलमान जो है वो पूरा ईमान के साथ जीता है। अगर मैं अभी ईमान के साथ ऐसा लगेगा अरे ये तो इस्लामिक बातें कर रहा है, मतलब अब मैं वर्ड मुसलसल ईमान जो बोलते हैं, आप हिंदी में आप उसको हिंदी के हिसाब से बोलो, जो भी बोलो वैसा है, तो वो मुस्लिम होता है। So then you move into other religions or other ways of life, if you could say that, you know. So when a person comes into becomes a Muslim again or revert, we call it revert. They revert back into being Muslim. So he started doing according to his own saying only. He started doing well once he's reverted back to
being Islam, you're taking up Islam. That's it. या बिकॉज बहुत टैलेंट है. इनफैक्ट वो जैसे रखता है एक आता है, आई कीप ऑन वॉचिंग एंड आई लिसन टू इट. It's amazing. लाइक इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल. And वही बोला कि and then creative people जो होते हैं ना, उनको रिलीजन से लेना देना ही नहीं है. Exactly. मैं भी अपने डैड को कई बार बोलता हूँ हमारे इंडस्ट्री में ये चलता है. लेना देना ही नहीं है. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं आपसे, आप मुसलमान हिंदू हो या जो भी हो, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ. क्यों क्या और जरूरत मैंने अपने 20 साल के करियर में कभी नहीं देखा ऐसा कुछ कि हम आपस में कुछ डिस्कशन भी हो रहा है. वी आर, मैं पापा अपने घर पे बोलता हूँ हमारे इंडस्ट्री को यूनिट बोला जाता है. जहाँ एक बंदा भी अगर बाहर होता है तो फिल्म खराब हो जाएगी. खराब हो जाए. सबका अपना काम होता है, सब अपना काम करते हैं. बिल्कुल. I think that's what. सो हमारे ऐसा नहीं ये डोमिनेट कर रहा है, ये डोमिनेट सब करते हैं अपने अपने पैसे के इंटरेस्ट के हिसाब से. बट कोई रिलीजियस डोमिनेंस नहीं है. रिलीजियस नहीं है. वो अलग बात है कि अब आ रहा है. हाँ, अब आ रहा है. अब बहुत बुरी तरह से और आ ये रहा है. बहुत जल्दी चला भी जाएगा बिकॉज आवर Hopefully, इंडस्ट्री yeah. कैन नॉट सर्वाइव विद दिस काइंड ऑफ डोमिनेंस. होपफुली अब देखो वक्त ही बताएगा. जो भी है वक्त बताएगा. हाँ बराबर. इवन आई बिलीव दैट कि वो आएगा, वो या तो बहुत ज्यादा अच्छा करेगा या तो बहुत ज्यादा खराब करेगा. जो भी होगा खराब ही करेगा. मुझे लगता है अच्छा करेगा. मैं तो आई एम बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट बिकॉज आई एम वेरी क्लियर इन दैट. यहाँ डोमिनेंस किसी का भी नहीं चलता है. क्रिएटिविटी का चलता है. हाँ, अगर आप क्रिएटिव हो, आपके अंदर सीखने की चाह है, साथ में चलने का जुनून है, तो आप रहोगे. लाइक आई रिस्पेक्ट यू एज अ सीनियर एंड मुझे आपका काम पसंद है. आई लव योर वर्क. यू रिस्पेक्ट सनी पाजी Of course. a lot when you were there with them. Yeah, absolutely. So it's absolutely. always work like this only. And there's no way of working. There's no other way of working. Yeah. मैं पापा को भी वही बोलता हूँ, यहाँ पे सिर्फ टैलेंट का रिस्पेक्ट है, बाकी कुछ नहीं है. बाकी कुछ भी नहीं. आपके पास टैलेंट है देन यू आर रिस्पेक्टेड. फिर वो बच्चा ही क्यों ना हो. बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल सही बात है. एकदम. कोई छोटा बच्चा भी क्यों ना, अगर वो छोटा बच्चा जैसा मैं साची एक छोटी बच्ची है. सो उसके बाद मैंने काम किया था. वो जब इतनी छोटी सी बच्ची, इतनी छोटी, शी इज बिकम अ हीरोइन अब टेलीविजन के अंदर. शी इज प्लेइंग द मेन लीड्स एंड ऑल दैट. उसका छोटा भाई है आन. ओके, इतना सा है, लेकिन उसको सारे श्लोक आते हैं. उसको जो गणपति का वो आता है, सब मतलब जो आप जो बोलते हैं ना मंत्र, गायत्री मंत्र आता है, शिव स्तोत्रम आता है. इतना सा बच्चा है वो. आई थिंक उसने ना अभी ही प्लेड, आई थिंक ही प्लेड अभी जो सोनी में शो आया था, श्री गणेश नहीं, हनुमान के ऊपर. हाँ, हनुमान के ऊपर जो शो आया था सोनी पे, उसमें जो छोटा जो बना था, वो उसकी बात कर रहा हूं मैं. अब वो इतना छोटा है, लेकिन he commands such authority on the set because he knows his job. Exactly. You should know your job. He knows his job. Not like माँ ने बोल दिया. माँ नहीं, माँ तो है, माँ तो is there just as a thing. मगर जो कमांड करता है वो बच्चा कमांड करता है. एंड बेफजूल की कमांड नहीं. ऐसा नहीं कि मुझे ये लाके दो, नहीं, मैं काम करूंगा. लेकिन इट्स अमेजिंग. तो ऐसा भी है, लाइक यहाँ पे क्रिएटिविटी इज एट द थिंग कि जो क्रिएटिव है उस पर रिस्पेक्ट है. आप भले 50 साल से हो, लेकिन अगर आपने कुछ दिखाने कुछ उखाड़ा नहीं है, तो आपकी रिस्पेक्ट भी एक वही लेवल के हिसाब से होगी. बिकॉज वही क्योंकि मैं बाहर वालों से कभी भी सुनता हूँ ऐसा, बोले हमारे ये सब नहीं है. वी रिस्पेक्ट सुभाष घाई साहब लाइक एनीथिंग इज गॉड ऑफ डायरेक्शन. वी रिस्पेक्ट राज कपूर साहब. मतलब मोहम्मद रफी का तो सब सिंगर्स बोलते हैं आज तक उनकी टक्कर का मिला ही नहीं है. अभी भी नहीं है. एक किशोर कुमार, एक मोहम्मद रफी, ये दो नाम आज तक है हमारे इंडस्ट्री में और हमेशा रहेंगे. बिल्कुल. आई थिंक सही बात है. एट दिस पॉइंट यू फील कॉन्टेंट कि अब सब मिल चुका है. एंड ये बहुत अहम क्वेश्चन पूछा है. द वेरी अहम पड़ाव ऑफ माई लाइफ. क्या मैंने कर लिया, मतलब घर भी सेटल. अब क्या है ना, अब क्या है, सी अब मुझे ना प्रूव करने के लिए नहीं करना है. एक्टिंग करने की जो चाह है वो मेरी पर्सनल चाह है. वो मुझे अच्छा लगता है. आई लव एक्टिंग. लाइक वो कौन सा दूसरा प्रोफेशन है जो इंसान इतने सारे चेहरे जी सकता है एक जिंदगी में.
एंड वी एज बिहाइंड द कैमरा पीपल वी टेल इट कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहां आपको इतने कल्चर्स देखने मिलते हैं, इतने लोगों से मिलने मिलता है, इतना घूमना मिलता है. मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी आई बीन लाइक 10 टाइम्स नाउ. सो मेरा अगर कोई दूसरा जॉब मुझे ये अलाउ भी तो ये कि आपको एक कैबिन में बैठे क्यूबिकल में बैठे होते हैं यार, जिंदगी निकल जाती है वहां पे लोगों की यार. तो सो एज एन एक्टर आई विल नेवर बी सेटिस्फाइड. बट अब क्या है कि आई थिंक लाइक आई सेड नाउ बिकॉज ऑफ बॉर्डर 2 आई हैव बीन वैलिडेटेड, यू नो. आई फेल्ट हाँ ठीक है, अब लोग जानते हैं अब मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, पर लाइक अब नाउ इट्स कम आउट इन द ओपन कि ये अली हसन है, ये काम क्या है, यू नो, दिस द लाइक. तो ऐसे नाउ इट्स गुड. ना अगर मुझे सपोज कल को एक्टिंग छोड़नी भी पड़े और कुछ और काम कर, ऐसा होता है ना, मतलब यू वांट टू लाइक समटाइम्स एक्टिंग कभी छूटेगी नहीं, बट मे बी आई विल जस्ट टेक अ पॉज and say let me just refresh myself, do something else for some time. And then अगर वो मौका मिला तो आप एक्टिंग तो आप यार 80 साल की उम्र भी कर सकते हो, आके मैं आई कैन जॉइन एक्टिंग अगेन. तो ऐसा लगता है कि हाँ कोशिश है, ट्राई करना चाहिए, बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स ऑफ एक्सप्लोरिंग. मैं हमेशा बोलता हूँ समित कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. आई रियली कैन. मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ, आप मुझे कुछ भी दे दो मैं कर सकता हूँ. लाइक मुझे क्रिएटिव में मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं पॉटरी करता हूँ, मुझे आई एम गुड विथ माई हैंड्स. मैं मैकेनिक का काम कर सकता हूँ, मैं कारपेंटरी कर सकता हूँ, मैं प्लम्बरिंग कर सकता हूँ. मैं तो आई लाइक टू डू दिस. और मैं अपने घर के अंदर मैं ही करता हूँ. ओके, मैं नाना के साथ ये करता था. कोई भी चीज टूटती थी उसको कैसे ठीक ठाक करने का है. आई वॉज ऑलवेज द हैंड्स ऑन गाय इन माई हाउस. सो एवरीवन कुछ भी होता था, अली को बुलाओ कर लेगा ठीक. एंड आई शुड डू इट. एंड ये तो एक बेसिक घर का हो गया. आई लव टू डू इंटीरियर डिजाइनिंग, आई लव टू डू आर्किटेक्ट. और आप मुझे कुछ भी बोल दो, मुझे आई लाइक टू डू. वो अलग बात है कि मैं ये लाइन में आ गया हूं, तो शायद ऊपर वाले ने ये लाइन में इसलिए मुझे बोला ये एक लाइन कह तुम वो सब जिंदगी जी लोगे. बट आई एम वेरी हैंड्स ऑन पर्सन. तो यहाँ पे क्या होता है ना, बिकॉज यू ऑन टेलीविजन, ठीक है आपको लोग देख रहे हैं, लेकिन अंदर ना आपको मालूम है कि आप उठ के वहां जाते हो सेट पे, उतना आपका जितना जो भी टाइम है वो वापस घर पे आते हो. और वही जिंदगी है. भले लोग देख रहे हैं आपको, वो लोग अरे और क्या जिंदगी है, वो लोग बोलेंगे अरे क्या मस्त जिंदगी है, टीवी पे आ रहा है, सब जानते हैं इसको. लेकिन फॉर यू एज अ पर्सन यू जस्ट गोइंग टू वर्क एंड शूटिंग एंड कमिंग बैक. आपके लिए कोई नयापन नहीं है. तो वो नयापन ढूंढ रहा हूं मैं अभी. नाउ आई थिंक आई नीड समथिंग विच विल पुश मी क्रिएटिवली, फिजिकली, चैलेंज मी, जो मेरे अंदर डर पैदा करे ताकि मैं कुछ करूं. अभी आई एम लाइक एक्टिंग होगी अच्छी बात है, नहीं तो आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू. सो आई एम लुकिंग एट समथिंग सर्टेन थिंग्स. एंड यू फील ऐसा कोई एक होता है ना, एक इंट्यूशन आ जाता है कि यार अभी कुछ बड़ा होने वाला है लाइफ में, कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा कभी लगता है ऐसा? तो मेरा तो वक्त शुरू हो गया ना. मेरा तो वक्त शुरू हो गया 2025 से. मेरा वक्त शुरू हो गया 2025 से, 2023 से शुरू हो गया था, लेकिन वो अभी एकदम गर्म हो गया है. एंड अब से मेरा सिर्फ अच्छा ही वक्त है. एंड again you are saying the right things. Is it astrology? It's not astrology, it's intuition. internal feeling. It's an intuition. Because my grandfather used to tell me कि जब आपका वक्त आने वाला होता है ना, where you gonna achieve many things, आपको अंदर से पता चल जाता है कि ये 2 साल मेरे पास है, 3 साल मेरे पास है, ये 5 साल मुझे भगवान ने दे दिए कि अब तू कर, तुझे कोई नहीं रोकेगा. एंड आई एम फीलिंग इट आफ्टर 2024 के हाफ के बाद से, या दिसंबर से पकड़ लीजिए, कि आई एम फीलिंग इट. हाँ यार वो टाइम आ गया. और उस टाइम वो बोलते हैं आपको ऐसा लगा आप जिस चीज में हाथ डाल रहे हो वो हो जा सक्सेस हो जा रहा है. यू आर सो राइट. सो ये मेरा ये जो आप बोल रहे हो ना, see again the very fact that you're using the right questions and you've not prepared any question, it's just a conversation, right? तो after getting out of a particular show which I was a part of, I think क्या था ना, maybe it's not apart from the intuition, I think it's बोलते हैं ना कि आपके
वो आप लाइक आपके हाथ से अगर आप करते हो तो आप यू हैव मोर कंट्रोल ओवर योर लाइफ. When I got out of the thing, I got out from a place of complacency into a place where I have to work now. Okay, and हर चीज मुझे अपने हाथ से करनी पड़ी. Okay, तो लोगों से मिलना भी, अलग अलग चीजें ट्राई भी करना. गिटार, I learned guitar playing, not for anything. मैं बोला I do jiu-jitsu. I learned guitar. सीख रहा हूँ मैं, गिटार बजाना सीख रहा हूँ. ये सब मैं चीज ट्राई इसलिए कर सका क्योंकि आई वॉज आउट ऑफ अ प्लेस वेयर मैं 9 to 5 जॉब कर रहा था एज एन एक्टर, एंड आई हैड टाइम, सो आई कुड एक्सप्लोर वेरियस फैसेट्स ऑफ लाइफ. व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग वेरियस फैसेट्स ऑफ लाइफ, एक अंदर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ. सिर्फ जानना नहीं था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन एक्चुअली डू इट बिकॉज, बट इतना मालूम पड़ा कि आपको करना पड़ेगा. आप सोच, आपको जाके करना पड़ेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो. मैं तमिल सीख रहा हूँ, मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ क्योंकि आई जस्ट वांट टू एनरिच माय लाइफ, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बस सीख रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू लर्न. जब जितना इंसान सीखता है तो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस और ज्यादा आता है कि यार मैं तो और कुछ भी कर सकता हूँ. अब जैसे मैंने तमिल, अगर मैंने 100% सीख लिया तो आप मेरे लिए पूरा एक इंडस्ट्री खुल गई. साउथ की, यस, पूरी खुल गई. मैंने स्पेनिश सीख लिया, मेरे लिए ट्रांसलेशन की इंडस्ट्री खुल गई. डबिंग ट्रांसलेशन की इंडस्ट्री खुल गई. yes. मेरे लिए वहां की एक्टिंग इंडस्ट्री खुल गई. आप समझ रहे हो, गिटार सीख लिया, मेरी सडनली आई कैन रिकॉर्ड म्यूजिक ऑन माई ओन, वो इंडस्ट्री खुल गई. तो सडनली यू स्टार्ट फीलिंग एम्पावर्ड कि यार मैंने ये सीख लिया, ये सीख लिया. जब सो यू नीड टू लर्न. तो व्हाट हैपेंड, आई स्टार्टेड learning things, and that empowered me to have confidence in myself and say यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ. उस confidence के साथ I went out into the world to go for my auditions and to go for this and that. और वो confidence reflected in my performances. बहुत, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे यार ऐसा नहीं. Everything is connected. Every freaking thing is connected. आप किस तरह से चलते हो, बैठते हो, कपड़े पहनते हो, बातें करते हो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. मैं तो अपनी बेटी को ये बोलता हूँ, तो वो मैं आऊंगा, आई कम बैक टू दैट थिंग. सो आई एम सेइंग, तो व्हाट हैपेंड दैट इट ट्रांसलेटेड इनटू कॉन्फिडेंस व्हिच ट्रांसलेटेड टू मी गेटिंग द वर्क. तो मैं जाता हूँ, अब मुझे ये तो इन लोग ने मुझे बुलाया, मतलब ये मेरे लिए ही है, यू नो. तो पहले क्या होता था, पहले ऐसा दिमाग होता था यार होगा नहीं है. अब मैं जाता हूं, मुझे मालूम है कि ये 50-50 है, 2 जन होंगे उसके अंदर बुरा. कुछ मैं जाता हूँ, मुझे मालूम ये मेरे लिए है. मुझे ये लाइक 2-3 जो शोज हुए वो मैंने जाके सब ले लिया. मुझे मालूम था ये लाइक जैसा शिमारू का जो शो था, जो अमेज़न का शो था, मुझे मालूम था कि वो मेरा है. बिकॉज आई जस्ट वेंट देयर लाइक नो वन कैन डू दिस एज बेटर एज मी, नोबडी कैन डू दैट. अब वो कॉन्फिडेंस है, अब क्या बोलोगे उसका. मुझे इतना मालूम है सर्टेन रोल्स जो मैं ही कर सकता हूं, जो और कोई नहीं कर सकता. The reason I asked you this now, from the time you entered and we having conversations and all, मतलब I felt that aura around you कि अब मेरा टाइम आ गया है. मतलब जो एक होता है ना, हमें इतने टाइम से हमें करना था, so now that time has arrived of mine. Yeah. So that's the reason I asked कि ऐसा कुछ आपको अंदर से अभी फील हुआ है कि yeah, like I told you, so आपने महसूस किया वो. Now that's the aura I move around with. That's the aura I just move around with. कि मैं आया हूँ, अगर मेरी जरूरत है, so बहुत जरूरी भी है, तो अगर वो होता है तो बहुत सारे कॉल आते हैं, सर ये है वो है. I can say no. पहले I could not say no. And the moment you get the power to say no, खत्म. मतलब इट्स अ वेरी बिग लिबरेशन. दिलीप साहब बोलते थे ये चीज, अगर आपको ना बोलने की ताकत आ गई ना, देन आपसे सुपीरियर कोई नहीं है. यू फील लिबरेटेड. अब क्योंकि मुझे आई डोंट वांट टू मुझे नहीं करना है काम. I'll only do जो मुझे. And that is not arrogance, that is the personal choice. Like
पीपल टेक इट एज एरोगेंस बट आई फील इट्स अ पर्सनल चॉइस. नहीं यार, वो हाँ. कुछ सोच के बोला है, क्यों नहीं करना. क्योंकि ये बात भी रखो, हर कोई अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से आपको हाँकता है. आपके इंटेलिजेंस के हिसाब से नहीं हाँकता. तो आप अगर हर चीज को यस बोलोगे तो आप हर जगह पे उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से वो होते रहोगे. ये बातें मेरे जहन में थी, लेकिन इट केम टू द फोरफ्रंट इन द लास्ट 2-3 years. कि हाउस द फीलिंग लाइक? I'm loving it. I'm loving it. I will not downplay anything. Earlier, I used to downplay a lot of things and say again, नहीं. I'm not downplaying now. Because we are into internal communication films also, so we happen to meet lot of CEOs, chairmen of the company. So एक ऐसी मीटिंग हुई थी कैलकाटा में, एंड उनकी स्ट्रगल स्टोरी बहुत ऐसी थी कि वो टेम्पो चलाने से लेकर उन्होंने इतना. सो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि हाउ यू डिड दैट, लाइक ये कैसे, हम नए थे तभी. तो इज लाइक बस हो गया. आई ऑल्सो डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट इट हैपेंड. तो उस टाइम मुझे नहीं समझा वो चीज़. एंड अब मैं जब इमेजिन हमारी कंपनी हो गई है एंड वी आर डूइंग दिस कथन एंड ओरिजिनल्स है, अलग चल रहा है, और मुझे खुद भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया. Because you believe in yourself. बिकॉज ये सेम आंसर मेरा भी है. अगर कोई पूछे, अभी तक तो पूछा नहीं बट कोई पूछे, तो आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड. मतलब मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट भी है कि जहां हमने पूरा ग्रॉसरी खरीदा, पेमेंट का टाइम आया है एंड आई डोंट हैव मनी इन माय अकाउंट. सो मुझे आज भी याद है, बैग में छोड़कर वहां से निकला एंड इट वाज नई शादी हुई है. इट वाज एम्बैरेसमेंट फॉर मी एंड माय वाइफ. And now my daughter is going to one of the best business schools. They are staying in best of society. And अब मुझे उस सर्वाइवल का टेंशन ही नहीं है कि आई नो द मनी विल कम. कहाँ से आएगा नहीं पता आज भी, बट आ जाएगा. सो यू हैव दैट फीलिंग कि चलो यार मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैंने इतने शो से बाहर आया हूँ, ये मैंने एक शो छोड़ा है. सो हाउ इट हैपेंड, लाइक उसका आंसर है कि किस वजह से हुआ ये, या बस हो गया. किस वजह से क्या हुआ, ये जो सक्सेस मिली है ये किस वजह से? ये तो मैं वही से बोला ना कि वो सी एवरीथिंग इज कनेक्टेड, लाइक आई सेड, इट्स नॉट ओवरनाइट. अगर वो साल जो मैं घुट रहा था वो भी जरूरी थे मेरे लिए, जो मैं अपने आप को डाउट कर रहा था वो भी जरूरी थे मेरे लिए. क्योंकि अगर मैं घुट नहीं रहा होता, मैं खुद को डाउट नहीं करता, तो वो पावर मैं अंदर पैदा नहीं कर पाता जिससे मैं बाहर निकल के कूदूं. अगर मुझे सब चीज नॉर्मल है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ इतना है, हाँ ठीक है, अगर ऐसी जिंदगी चलनी है तो चलती रहेगी. है बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को, दे आर वेरी हैप्पी बीइंग वेयर दे आर एंड दे हैव बीन देयर सिंस सो मेनी इयर्स. नॉट दैट आई एम सेइंग कि आई हैव रीच्ड एंड आई एम लाइक, नहीं, आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ नाउ. आप समझ रहे हो, मैंने 26 साल भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन if you can compress those years, those are the years which have just prepared me from what I'm going to achieve from now on. मैं तो एक्चुअली I feel अब मुझे वो आंसर मिला मेरा खुद का, हाँ, जो लाइफ का था. बिकॉज वो इंसिडेंट ने मुझे इतना हिट, उस इंसिडेंट को मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए, बट इतना हिट किया है आज तक मेरे को वो डर लगता है उस इंसिडेंट से. तो वो डर इसलिए है और उसकी वजह से कि ये वापस ना हो, अब वो एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, एक्स्ट्रा स्टेप ले लेते हो, है ना. सो अगर वो नहीं होता तो वुड हैव टेकन दैट एक्स्ट्रा स्टेप अहेड इन टाइम. ये डर आपके अंदर बैठा होता कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए. और वो आज, और मुझे नहीं लगता मेरे डेथ के साथ ही वो शायद जाएगा वो डर. वो हमेशा मुझे याद आ जाता है व्हेन एंड लाइक 3 days back me my daughter we went to Courtyard for dinner. And I was telling my wife कि तुझे याद है क्या वो वाला दिन? I still remember it. And she, अरे देखो इतना क्यों सोचता है उस बारे में, पता नहीं वो मेरे दिमाग से नहीं, अच्छी बात है. दिमाग से ऐसा नहीं कि it's in the front of your mind, but it keeps you on the edge. It keeps you on edge. So there were many ऐसे तो बहुत सारे मेरे सालों में भी है ना, कितना साल रहे हैं. एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि आई वाज नॉट वर्किंग सच अ लॉन्ग टाइम, आई नॉट यूज माय क्रेडिट डेबिट कार्ड. पैसे नहीं थे तो क्या इस्तेमाल करोगे. एंड उस टाइम मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब बोलते हैं कि यू मे हैव बीन इन डिप्रेशन और समथिंग.
आई डोंट बिलीव इन द वर्ड, बट लोग बोलते हैं, तो आज से चलो ठीक है, ओके, अगर आप ये बोलते चलो ठीक है, डिप्रेशन में होगा। आई फॉरगॉटन माय क्रेडिट कार्ड का डेबिट कार्ड का पिन, क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं किया है। एंड वो होता है ना, व्हेन यू आर इन डाउनवर्ड स्पाइरल ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, ये सारे से बोलने का अच्छा लगता है कि नहीं कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये है। आई थिंक यू शुड allow the life to go however it's going. If it's going in a downward spiral, of course, ये तो ऐसे नहीं कि जिंदगी भर downward spiral में like आप मर जाओगे, ऐसा तो होने नहीं वाला। You have to understand everything in life is in a cyclical way. तो अगर आप downward spiral में भी जा रहे हो, allow it. I'm not saying enjoy it, but I'm saying allow it. But just be very mindful about the fact that you're okay, ठीक है, अभी ना कुछ हो रहा है और मेरा ये मूड है, ओके ठीक है, आई ट्राई टू डू समथिंग गुड, बट अगर नहीं हुआ तो मैं अपना वो मारूंगा नहीं। लेट योरसेल्फ बी इन दैट, एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन हिट एंड देन इट विल स्टार्ट गोइंग अप अगेन। Yeah, the best part I follow is just to take a step back and keep always just, and that's how I've always lived my life. I don't try to become too flustered कि अरे यार मैं तो ये क्यों ना, अरे यार ऐसा नहीं, यार होना चाहिए, नहीं चलो इसको ये कर लो, नहीं ये कर लो, क्योंकि मैंने एक दो बार किया, मैंने ऐसा फ्लस्टर होके ना, नहीं यार ऐसा कैसा, मेरी अभी बच्ची हुई है, ये कुछ करना है, वो कुछ करना है, उसमें मेरा नुकसान मतलब लाख का 12,000 हुआ है, लिटरली। and it happens that way only. और मैंने समझा, बोला भैया जोश में आके काम मत करो, क्योंकि फायदा नहीं है। एक तो जोश में आके आप बहुत सारी चीजें कर लेते हो जो आपकी चीज आपके बस में है नहीं, और आपके इट डजंट गो विद योर वाइब, और आप पैसे का पानी करते हो, आप नुकसान उठाते हो, एंड you get exploited also. एवरीथिंग गोज नेगेटिव, एंड देन व्हाट दैट वो सर्कल जो यूं जाके यहाँ खत्म होने वाला था, आपने और हिल दिया तो यहाँ और नीचे चला गया। Understanding what I'm trying to say? I'm a very visual person, so I like to showcase like that. तो for me when things are not going my way, वो एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे मेरा पैसे का पानी हुआ था, एक्सपर्ट हुआ था मैं, I wanted to become a producer, तो समझ जाओ बाकी सब चीजें समझ जाओ, तो I got exploited and all that. And again, I did not come out in the newspaper कि ये हो गया, वो हो गया, नहीं, I said that's my thing. Why should anybody else want to know about it? And you know, मैं क्या कर लूंगा, अगर पेपर भी डाल दे क्या होगा, लोग पता चल जाएगा, sorry to use the word, पागल है। नहीं, it's my thing. I have to learn from it. I learned from it. I said शांत। हमारी इंडस्ट्री में नोशन है ना, वो कोई बोलता है प्रोड्यूसर्स की लाइफ अच्छी है, कोई बोलता है एक्टर्स की लाइफ अच्छी है, एंड आई फील दोनों की लाइफ ही फक्ड अप होती है एक टाइम पे। प्रोड्यूसर्स को अपने टेंशन होते हैं, एक्टर्स को अपने टेंशन होते हैं, सबका अपना टेंशन होता है। जैसे जब स्लैक चल रहा होता है, ऐसा लग रहा है यार कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम फर्स्ट कर छोटे प्रोजेक्ट ऐसे उठा लेते हैं, चलो यार जो आ रहा है आने दो। फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है 15 दिन में, देन वी रियलाइज अरे ये नहीं उठाना चाहिए था, इस वजह से बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं ढंग से कर पाया, नहीं हो पाएगा। सो आई एम जस्ट रिलेटिंग योर थिंग विद योर लाइफ, क्योंकि फाइन, हाँ ये होता है, मेरे साथ भी होता है कि हम कुछ प्रोजेक्ट, इनफैक्ट लास्ट मंथ एक प्रोजेक्ट लाइक क्यों उठाया इसको मैंने, यार ये नहीं चाहिए था मुझे मेरी लाइफ में, and then you get exploited, you get everything. So like I said, see, it all comes to the fact now that I said, when I say no, ये छोटे प्रोजेक्ट्स जो है ना, I can say no to them. Yeah. Because now भले पैसा जो है काम से ही आएगा, और अगर आपने काम नहीं किया तो मालूम नहीं पैसा कहां से आने वाला है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस एक है कि अब साला अच्छा ही काम आएगा, और पैसा भी अच्छा मैं बोल सकता हूं, और वो हो जाएगा। अरे भाई, आपसे बहुत लोगों ने सीखा होगा, इवन योर यंग सिबलिंग्स, आपने अपनी बेटी से क्या सीखा है? टू लिव इन द प्रेजेंट। तो मैं बिकॉज हम लोग एक्टर्स है, वी आर सो स्टूपिड अडल्ट्स कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि आगे कैसा, एंड यू आर थिंकिंग फॉर योर फैमिली ओनली, राइट? बट वो इतना उनको कुछ लेना देना नहीं है ना, आज अच्छी, और मैं सोच रहा हूँ, और वो बेचारे आके खेल रही है मेरे साथ में, बाबा ये करो, बाबा वो करो, मैं अपने हाँ ना ठीक है, हाँ ना रुको ना आधा घंटा दो मुझे, and I'm thinking about, and I'm forgetting that my daughter wants to play with me.
वो आज में जी रही है और मैं आई एम अवॉइडिंग दैट ब्यूटिफुल टाइम जो मैं उसके साथ शेयर कर सकता हूं एंड आई एम थिंकिंग अबाउट फ्यूचर जो मेरे हाथ में नहीं है एंड इट गॉट मी थिंकिंग समवेयर डाउन द लाइन आई सेड ये क्या स्टुपिडिटी कर रहा हूं सो नाउ व्हेन आई एम विथ हर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग तो ऑल जो मैं अब जो बोल रहा हूं ना कि तुम्हें कि जो 26 साल में जो जो सीखा है जो जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो जो छोटी छोटी ये बोल्ड कसना ये होना वो होना ये सब has made me to this point where I am right now. When I'm super confident, I'm living in the now, and I think there's no better actor than me in the kind of roles that are offered to me, because there's a particular niche. I'm not saying कि मैं हर तरह के रोल करूंगा, नहीं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन there's a niche जहां पे only I can do it. Nobody else can do it. आप दोगे, आप दूसरे को दे सकते हो प्राइस के लिए, you know, like बजट के हिसाब से, लेकिन what I can perform and give, nobody can. Your relations भी देखता कपूर. Yes. Is it आपका क्या एक्सपीरियंस है? See, I would share mine. मैं तो इंटर्न था, बहुत छोटा सा उनकी कंपनी, but I've seen her as an iron lady. Like, मैं उनको देखता था ना, people जो सोचे ना, यार वो इतना काम करती है, कैसे मैनेज करती है, इतने बड़े बड़े सेट्स, इतने लोग. सो मेरे लिए तो इंटरेक्शन भी कभी नहीं हुआ उनसे. नहीं मैं बहुत डरता था उनसे, क्योंकि उनका एक ऑरा बना दिया था मेरे आसपास कि वो चिल्लाएंगी, वो ये करेंगी, तो मैं जब भी वो आती थी मैं साइड में रहता था, जबकि उन्होंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं मेरे सामने तो कभी. But it's the aura that's you're scared of, right? But then I used to be very fascinated by her कि यार ये कैसे मैनेज करती है यार इतना सब. तो and एकता कपूर loves her actors a lot. वो मैंने देखा है, she pampers them a lot. See, that's what I'm saying. बालाजी इतना पनपा क्यों? Because एकता ने इतने एक्टर्स की दुआएं ली है, and she's made stars. She made me a star from a nobody. तो चाहे हम लोग अब it's been like over 2 decades I've not been in touch with her because but I will never ever, and I should never ever forget the fact that she saw potential in me when the world refused to, because she was not the first person I went to ask for work. No, I went to many other places, but she saw the potential and she gave me work and she made me a star. उस टाइम तो you were like a chocolatey boy की एंट्री हुई है कहानी घर के, एक लीप लिया है कहानी. Yeah. So luckily, and I've seen some crazy times. So I will not deny that fact, because the craze उस टाइम पे जो हम लोग ने देखा है, सिर्फ मैंने नहीं, मेरे जो लेवल के जो सारे एक्टर्स थे, सबने देखा है, जो वो अलग ही चीज है. You were bigger than film stars at that point of time. कहानी घर की और सास भी की, I still remember. वो सास भी कभी बहुत ही में मिहिर की री एंट्री होने वाली है एंड TRPs जो शूट हुए थे वो एपिसोड के, ऑलमोस्ट सब घर में वही शो चल रहा है. आप रास्ते पे जाते थे तो आपको कहानी घर एंड दोस वर लाइक KBC कहानी घर की क्योंकि ये जो बैक टू बैक आते थे इश्यूज, आई स्टिल रिमेंबर द ऑरा, वो रोड खाली होता था एंड सब देख रहे हैं. एब्सोल्युटली. So yes, we've seen the best of times. Ekta has been fabulous. I've been luckily to know her. I've been very lucky to know her. You know, be close to her for a given point of time. जब तक मैं बालाजी में था, and she's always been a very, you know, a very clean lady in sense कि जो है मुंह पे है Exactly my point. मैंने तो उनको वही नोटिस किया है कि जो है मुंह पे है, पीठ पीछे ऐसा कुछ no hanky panky and that. So I've had a good time with her. अब नसीब में हमारी जर्नी साथ में ज्यादा दूर तक नहीं थी तो रहा, लेकिन ठीक है. इंशाल्लाह देखो, world is not ending tomorrow. So you never know what the future brings. And she's still growing like anything still. Now again देखो, वही ना, again stars are running high. Then they've come down to a level. Now again Kyunki and Nagin and this and that and सब हो रहा है, तो you never know, again things can happen. But of course
वो जो शौहरत, वो जो जमाने का जो जो जुनून है जो लोगों ने देखा है, एंड ऑल्सो शी वाज वेरी यंग. माय yeah, that time she was young. for me the thing was कि ये एज पे, चलो ना एज होली ना उस टाइम सेम, ये एज पे टू हैव दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग एन एम्पायर and without anyone's help नहीं मैं देखता no one's था. help, She used to, because I used to know कि रात को 2-2, 3-3 बजे उनका कॉल आता था about the script. सारे बेचारे राइटर्स में से ऑफिस में लेटे रहते थे और घर पे बंगले पर लेटे रहते थे. So yeah, that was another ball game altogether. So that's what I'm saying. I've been blessed. मैं बता नहीं सकता, but I've been really blessed to be a part of many places where history was being made. And not by think it was by divine intervention. मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, नहीं वहाँ बालाजी में कुछ, अच्छा वो मूवी हो रही है मैं वहाँ जाऊँ, अपने आप से होता रहा सब चीजें, you know, and I've become part of very big projects. Of course, I've lost out on many other big projects also, जिसका मुझे लगता है यार शिट ये इसमें होता तो मजा आता, you know, उसमें होता तो मजा आता. लेकिन कोई रोल यू रिमेम्बर जो मिस किया हो? मिस क्या? या ऐसा कोई रोल जो आप फिल्म में देखते हो, अरे यार ये मुझे मिलता तो मैं. You know, I'll tell you one thing. I'm a big fan of, जैसे आपने जो पहला नाम लिया था, अमरीश पुरी साहब का नाम लिया था. I want to. No one can take his place, but I want to be the Amrish Puri of the industry. I want to be the Danny Ranjungpa of the industry, because they had a unique flair in performances, in their aura. मतलब आप उनको खड़ा करो और किसी भी एक्टर्स को खड़ा करो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी भी एक्टर जो उनका ऑरा होता था, जो पुराने एक्टर्स का ऑरा होता था, वो ऑरा देखने ही नहीं मिलता अब. क्योंकि हमें फिल्म मेकिंग में पढ़ाया जाता था, जब आप 35mm के पर्दे पर देखते हो और खाली इतना दिखता है उसका चेहरा, जब क्लोजअप लगता है और वो इतने बड़े पर्दे पे से, उस टाइम अगर वो पर्दा संभाल ले तो वो एक्टर है. एंड मुझे लगता है अमरीश पुरी साहब हो गए, डैनी साहब हो गए, प्राण साहब हो गए, यूसुफ साहब हो गए, सब, अरे जॉनी लिवर हो गया, कादर खान हो गए. मैं आज भी थिएटर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्लोजअप में कौन ज्यादा बोलता है. वाइड तो हर कोई संभाल, वाइड को हर कोई संभालो, ये 35mm संभालो इतना. So luckily, I was very lucky when I did Border to have a great director, Anurag, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया. जनरली लोग है ना सीक्वल खराब कर देते हैं, एंड ये ना बॉर्डर एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, इट्स एन इमोशन, इट्स एन इमोशन. तो मेरे को वो डर था ये खराब नहीं हो जाए खराब, बट व्हेन आई वाज बना यार ये तो एकदम बहुत अच्छी बनाई है. मतलब पूरा नया फ्लेवर दिया है इसको, सब अच्छा किया है, इमोशंस अच्छे रखे ना. I don't call it a war film, frankly. I've always said I don't call Border a war film. I call it an emotional film with a war background. Yeah, because people carry that emotion. कि यार हम बॉर्डर देखने जा रहे हैं. Yes, absolutely. आपको मेरा काम कैसा लगा बॉर्डर में? I loved it. I loved every character. Yeah. मतलब वो justice है, मतलब हर कैरेक्टर. आहान शेट्टी बोलो, दिलजीत सर बोलो, वरुण was an exception. Every villains like you, then the other villain who had then Jaideep Alawat. Jaideep. Sorry, no, Jaideep was in 21, not in this. But the other villains जो है, वो एक जो सीक्वेंस मुझे अभी भी याद है, वरुण धवन को मारने जाता है एंड गोल पीछे से वो एकदम शॉक, मतलब ये क्या हो गया. द फीलिंग. और जो बॉर्डर का बेस्ट पार्ट है, जो एंड में वो दिखाते हैं ना कि एंड ऑफ द डे, दैट वाज सो गुड. हम वॉर जीत गए बट इंसानियत हार गई. वो मैसेज मुझे इतना अच्छा लगता है ना वो हर बार. एंड देन दे गॉट द ओल्ड सुनील शेट्टी, दैट वाज लाइक फॉर मी, अरे पुराने चेहरे, वेरी सो नाइस टू सी ओल्ड फेसेस. एंड आई वाज शॉक्ड, मतलब, और वो ना कभी ट्रेलर में उन्होंने बताया ना, मैं थिएटर में मैं देखा, मैंने ये क्या सी. एंड कमाल की बात है, एकदम लास्ट में लाइक जनरली लोग उठ के चले जाते हैं, पर फिर भी लोग रुके रहे बिकॉज स्टोरी चल रही थी. यस, आप देखा तो स्टोरी चल रही थी. व्हेन द एंड क्रेडिट्स आर रोलिंग, स्टोरी चल रही थी और लास्ट में एकदम सब लोग आए और फिर इन्होंने थोड़ा. यू वेंट टू थिएटर फॉर बॉर्डर 2? क्या पीपल रिएक्शन व्हेन योर सीन वाज कमिंग? तो मेरे दोस्त लोग थे तो पागल हो गए वो तो. अब उन लोग, बाकी लोग को मालूम नहीं है ना, लाइक अंधेरे में इतना नहीं पता चलता. या जब बाहर निकल रहे हैं तब तो वो बहुत सारे लोग, अरे पीपल मॉब्ड है, मजा आया. लाइक नॉट दैट आई एम न्यू टू द फीलिंग, बट ये अलग चीज है यार. आपका चेहरा
आपका सोलो चेहरा दिखा है आईमैक्स वाले पर्दे पे, हाँ आपको मालूम कितना बड़ा चेहरा होता है आपका, लाइक आपकी नाक कितनी बड़ी होती है. So once Gulshan Grover sir told me, I told her, sir, my dad used to hate you a lot. मतलब that means I have done my job. ऐसा कुछ है, किसी ने गालियां दी है बॉर्डर देखने के बाद? नहीं गाली तो नहीं दी है, लेकिन पीपल आर लव, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि यार ये पाकिस्तानी है, ये ऐसा है, ये आप देखो मैंने तो एक्चुअली मैंने जनरली ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने खास जो लिख के भेजा है ना, आई हैव एक्चुअली मेड स्क्रीनशॉट्स ऑफ इट एंड आई मेड क्या बोलते हैं वो हाईलाइट होती है ना इंस्टा पे, उसका एक अलग से मैंने हाईलाइट्स बॉर्डर 2 का हाईलाइट करके एक मोना, यू कैन गो देयर एंड चेक आउट मैन, लाइक इतना अच्छा लगता है. एंड दीज आर ऑल रियल पीपल आफ्टर वॉचिंग द मूवी शेयरिंग देयर ओपिनियंस, यू नो, एंड यू फील वाओ, लाइक एंड ये तो बॉर्डर 2 बहुत बड़ी बात हो गई, तो बहुत बड़ी बात है, राइट. एज एन एक्टर आप काम करते हो, आप घर जाते हो, आप काम करते हो, आप घर जाते हो, आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स करते हो. आपको कभी कभार लोग आके बोलते हैं, सर आपको मैंने वो कयामत में देखा था दूरदर्शन वाला, मैंने कब किया था वो 2003 के अंदर किया था, उदय का कैरेक्टर था सर, एंड दे नो एक एक चीज. आपके बाल लंबे हुए थे सर कहानी में, आप ऐसा जो करते थे आँख का ये वही अच्छा लगता है, आपकी आंखें सर, आपकी स्माइल अच्छी है. एंड ये दे आर नॉट टॉकिंग टुडे, दे आर नॉट टॉकिंग बॉर्डर, दे आर टॉकिंग अबाउट देन. तो मैं सोचता हूँ आपको नहीं लगता है क्योंकि आप अब तो आपकी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन यू हैव हैड एन इम्पैक्ट ऑन सर्टेन पीपल अक्रॉस द डिस्टेंस, और आप उनको जानते नहीं, लोग वो आपको जानते हैं, और वो उसकी वजह से शायद उनके अंदर कुछ चेंजेस आए होगी, शायद कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा. जैसे 3 Idiots changed many lives. Yes, and you never know. So that's what I like about acting. That's what I like about this creative field. कि you may be behind the camera, I may be in front of the camera, but because हम दोनों हैं, तभी तो कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तभी तो वो वहां तक जा रहा है, तभी तो वो लोग देख रहे हैं. You feel blessed? Oh yeah, absolutely. मतलब I've never feel unblessed for a second in my life. I think I'm one of the most luckiest old souls that have come on this planet. And I'm saying this now, Sumit. मैंने पहले कभी ये हमेशा अंदर रखा है, मैंने कभी नहीं बोलता हूँ ये सब चीजें, but now I'm feeling कि I should be more expressive about how I'm feeling. You know, I should be more out there with my version of myself, जो लोगों को जानना चाहिए, you know, because अभी तक मैं ऐसे था नहीं यार. अगर मुझे पूछा होता you feel blessed, इतना होता मेरा आंसर. Because the reason I always say I feel blessed because मैं अब मेरे घर पे कोई भी इस फील्ड में नहीं है. दे सम मार्केटिंग हेड, कोई डॉक्टर है, कोई है. सो आई टेल देम मैं वो लाइफ जी रहा हूँ ना. मैं फिल्म सिटी में आज फ्री एंट्री फ्री एग्जिट लेता हूँ, मुझे जिससे मिलना है मैं देखता हूँ गेट के बाहर हजारों लोग खड़े रहते हैं, मतलब अंदर सिर्फ एक झलक पाने के लिए ना वर्किंग विद देम. सो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं उस 1000 में से भगवान ने मुझे चुन के यहाँ बिठा दिया है कि इनकी ख्वाहिशें हैं तो तू जा. बिल्कुल. आप परसेंटेज वाइज देखो, यू आर द टॉप ऑफ द पिरामिड. भले सक्सेस आना नहीं आना वो तो चलो नसीब की बात है. सक्सेस क्या है? व्हाट इज सक्सेस? राइट नाउ यू आर हियर डूइंग दिस सक्सेस. फॉर मेनी पीपल वॉकिंग ऑन द रोड, यू आर वेरी सक्सेसफुल राइट नाउ. योर आइडिया सक्सेस इज मैं शाहरुख खान बनूंगा, लेकिन शाहरुख खान एक ही है. You know, not that like he's attained where he is. Okay, he's attained because energies, aura, waqt, maneuvering, how to handle relationships, work. ये सारी चीजें मिलके him being there at the right place at the right time. So you will never ever have a second Shah Rukh Khan. You'll never have another. And why would you want to become a second Shah Rukh Khan? Rather than I become a first Ali Hassan, right? Yeah. Why would I want to become somebody else? अब तो I think प्रॉब्लम आज के जमाने में यह है कि सोशल मीडिया से हम सब ऐसा लगता है अरे यार इसकी जिंदगी देखो, तो सब लोग दूसरे की जिंदगी देख के जोश में आ रहे हैं. अदरवाइज तो आई थिंक बिकॉज आई फील वेरी दिस थिंग कि यार जो
मैं जैसे आपके साथ बैठा हूँ, कितने आपके फैंस आपकी एक झलक पाने के लिए तरसते होंगे जब आप मॉल में जाते होंगे, कितने जन हेजिटेट करते होंगे यार जाके बहुत सारे hesitate बात करते हैं, करूं, हाँ। ऑटोग्राफ लूं, कैसे फोटो कैसे मांगूं। लाइक मैं आई वाज शूटिंग विद शक्तिमान, जो हाँ। उनका कमबैक आया था, जो सॉन्ग है वो शूटिंग हाँ। क्रांति का। सो शक्तिमान वाज इन हिज ड्रेस His dress, एंड ही हाँ। जस्ट केम आउट ऑफ द वैनिटी वैन एंड आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड। ना सर, बचपन में ये शो जब मैं देखता था ना, मेरी इच्छा होती थी कि कभी तो मैं शक्तिमान से मिलूंगा एंड ऑल, एंड आई फील लाइक आई एम डायरेक्टिंग यू इन द सेम कॉस्ट्यूम। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर फॉर मी। लाइक हमने एक कैंपेन किया था मास्क वाला, शक्तिमान वेयरिंग मास्क, कोविड के टाइम पे, दैट द फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स उन्होंने वो ड्रेस पहनी थी। अच्छा फिर वो भी पुरानी वाली निकाल के फिटिंग करा के एंड वो कैंपेन इतना अच्छा चला कि इट गॉट 6 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। People are dying for Shakti. दूरदर्शन पे अच्छा चला एंड ऑल, एंड आई वाज लाइक कि सर अब लग रहा है हाँ मैंने कुछ काम किया है, मतलब आई एम डायरेक्टिंग यू एज अ शक्तिमान, द ऑरा जो आपने किया है। एंड सो दैट्स द रीजन आई आस्क कि जब आप कैमरे के सामने हजारों के भीड़ से निकल के यार आपको मौका मिला है कैमरे के सामने खड़े हो और अपनी एक्टिंग बता, Blessed. या ऑटोग्राफ लिख कर दे, Blessed नहीं मिलता है। आप सिर्फ परसेंटेज वाइज भी देख लो ना, तो यू आर इन द टॉप 0.0001% of the people. I'm even talking about everyone. I'm not talking about me alone. मैं आगे बात करता हूँ, I'm 0.000001% होगा कि हम जब एक तो ये इंडस्ट्री में है, साथ में काम कर रहे हैं, सबसे अच्छी चीज में काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, हाँ। तो आप सोचो हाउ हायर अप इन द pyramid are you? Yeah, so I think you should be blessed. You have to consider yourself blessed. Also the thing is, बोलते हैं क्रिएटिविटी जो होती है ना, जिसके अंदर हर एक के अंदर क्रिएटिविटी होती है, वो अगर क्रिएटिविटी इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो वो अलग बात है। वो आप कर रहे हो, अच्छी बात है। क्रिएटिविटी इज एक्चुअली गॉड्स गिफ्ट, डिवाइन हैंड थ्रू यू, जिससे, क्योंकि पेंटिंग करना, कुछ लिखना, पोएम लिखना, स्टोरी लिखना, डायरेक्ट करना, you're creating something new. Creation can only happen with his thing. Because sometimes I also feel किसी ने सोचा है और हम उसको साक्षात दिखा रहे हैं सामने कि तूने ये सोचा था कि ऐसे दिख रहा है। तो जिससे सोचा भी उसकी भी तो क्रिएटिविटी है, फिर आप अपने नजरिए भी डाल रहे हो, बराबर है। तो I'm saying creation is only through divine. So when, like, why I always say divinity, I'm close and I'm blessed, because I'm in this field and I feel blessed and I'm in touch with the divine. तो अगर मैं, तो अगेन वो पूरी बात आती है कि 26 साल करने के बाद आपको आज ये मुकाम पे हूं कि अब लगता है ये होने के बाद, अब ये मूवी भी कैसे मिली, ये हुआ कैसे, ये सब सारे, वो भी एक अलग कहानी है, वो तो हम कभी गौर करेंगे। लेकिन जब ये सब आप देखते ना कि वाह क्या किया था, उसे क्या हुआ, उसे क्या हो रहा है, उसे क्या हुआ, ये अभी मूवी मिली है, ये तो मैं तो सोच ही नहीं सकता था, ये तो अपने आप हुआ है। तो यू कैन जस्ट आस्क हिम कि भैया, लेट माय नेम्स बी टेकन इन ऑल अमंग्स ऑल दोस पीपल जिसको मैं जानता भी नहीं हूं, बिहाइंड ऑल दोस क्लोज डोर्स जहां पे मैं जानता भी नहीं कि दरवाजे हैं, मेरा नाम लिया जाए वहां पे, बिकॉज आप तो नहीं पहुंच पाओगे वो दरवाजे तक, लेकिन ऊपर वाला कैसा कैसा करके पहुंचाता है मुझे मालूम है, क्योंकि ये बॉर्डर 2 मुझे मिली है, मुझे मालूम है मुझे कैसी मिली है वो, एंड लकीली आई गॉट टू नो, नहीं तो मुझे कभी नहीं पता चलता, बट आई गॉट टू नो। एंड उसके क्रॉनिकल आप देखोगे ना, जो क्रोनोलॉजी आप देखोगे ना, क्रोनोलॉजी जो है, आप बोलोगे हैट्स ऑफ, दिस इज ओनली डिवाइन वर्क। तो when you just leave it up to him, it will happen. You have to believe and you have to be good. You have to be innocent, you have to be good natured, and just be confident in yourself. I think these are the basic things you need to do. Talking to you now, the Kathan ka jo, it's basically it's a CSR thing that we do. It's not for the money making or something. ये जो हम पैसा कमा रहे हैं हम लोग,
बिकॉज वी जस्ट वांट टू इंस्पायर लाइव्स. मैं आजकल पॉडकास्ट देखो, इतनी कंट्रोवर्सी ये सब चल रहा है, लाइक यार कुछ ऐसा. those are short ways out. Yeah, so it is just spread positivity. And I'm sure इसमें कमेंट्स में, जैसे हमने एक IAS ऑफिसर के साथ इंटरव्यू किया था एंड मुझे एक कॉल आया था कि वो इंटरव्यू बहुत पसंद है हमको. IAS सर ने जो अपनी कहानी बताई, वो कहीं तो दिल्ली से आया था कहीं से, एंड ही सो इंस्पायर्ड और उसको स्टडीज में हेल्प हो रहा है. सो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो यार एक जन ने ऐसा बोल दिया. आप सोचो ना, एक जन का भी अगर इफ यू कैन टच वन पर्सन, कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात हो जाती है. एंड देन IAS ऑफिसर को मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे आया था, तो ही इज लाइक कि मुझे नंबर दो, मैं बात करता हूँ उससे. एंड ही स्पोक एंड आई वाज लाइक यार मैंने एक लाइफ में कितना कुछ इन्वॉल्व कर. एक इंसान है दूसरे इंसान की, सिर्फ हर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करेगा, एक ही इंसान की मदद करे. आपको नहीं कि मैं पूरे गांव को, आई जस्ट नीड टू हेल्प हिम, दैट्स इट, ही कैन हेल्प द अदर वन. आप सोचो द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट हैपेंस. सो अली भाई, एट लास्ट one message you want to give to your fans and मैं अपने चाहने वालों से ये कहूँगा कि आप जो करना चाहें कीजिए, लेकिन अपने खुद के ऊपर भरोसा रखिए. कभी कभार चीज़ें आपके वक्त के हिसाब से नहीं होती है, लेकिन एक वक्त होता है नियति का, और उस वक्त में भरोसा रखिए, और जब होगा तो आपके सोच से 1000 गुना बेहतर होगा. एंड लगे रहिए जो काम कर रहे हैं. एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल. माय लव एंड विशेस टू यू ऑल. thank you so much, Ali. Thank you so much. It was superb, Ali. Thank you.